हो गया, स्टार्ट किया? ठीक। यस प्रभु जी। ओके। ओके प्रभु, हरे कृष्णा, वेलकम ऑल ऑफ यू। So this is our last class, and we are on the last part of this chapter, this chapter. And I was planning to go to Kumbh Mela, so I'm not sure whether the network will be good there or not. That's why I'm just planning. I'm just recording it beforehand so that we don't have any inconvenience. So this sixth chapter, the topic is Dhyan Yoga, and we are on the last part of this chapter. Uh, the last part, what we are finding is Arjuna has expressed Arjuna has expressed a doubt to Krishna that Krishna, this kind of yoga is very, very impractical, and because the mind is very unsteady, so Arjuna has expressed his doubt, and then Krishna answers that how, yes, it is difficult, but by practice and by detachment, one can do that. So that was the theme of this 33 to 37 shloka, where we are right now. And apart from that, another question Arjuna is going to ask in the next section, from 38 to 45, and Krishna is going to answer another very important question for a sadhaka, for a yogi to understand. And the last part, Krishna is going to establish that who is the topmost of the yogi. So, so when Arjuna asked that how it is very impractical to follow this kind of yoga because the mind is very flickering, very unsteady. So then Krishna told that how, yeah, it is. Krishna told that yes, it is. Yes, without doubt, it is difficult surely, but by proper practice and by detachment, one can follow this path of the yoga. Right? So this is what we discussed. This was shloka number 30. Yeah, we discussed it very elaborately last class. This was shloka number 35. Samshayam mahabaho mano durnigraham chalam abhyasena tu kaunteya vairagyena cha grihiyate. That by proper abhyas and by proper vairagya, abhyas means practice and vairagya means what? Detachment. So by if one will continuously practice, then and also if one will try to be detached, then one will be able to control one's mind. This is what Krishna told. Mm. And we discussed that why it is important to have the mind control and what is the way to control the mind. And as Prabhupada was mentioning in the purport, that the most effective way to control the mind is if we hear the transcendental activities of the Lord. If we do hearing of the Krishna Katha, then that is the easiest means that by which we can control our minds. No? So now next shloka, shloka number 36. No. Again, Krishna is mentioning further things. Krishna is answering Arjuna's query in the two shlokas. So this is the second shloka. Krishna is telling, Asamyatatmana yogo dushprapa iti me matihi vashyatmana tu yatata shakyo abhaptum upayatah. Krishna is telling, you see, asamyata atmana yogo dushprap iti me matihi. Right? Asamyata. Asamyata means what? Without control. Atmana means mind. है ना? Dushprap iti me mati, right? So with uncontrolled mind, one cannot perform the yoga. Dushprap, it is very difficult. It is very difficult to perform the yoga. Huh? Uh, It is my mati. Mati means opinion. Vashya atmana tu yatata shakyo avaptum upayatah. Right? But if somebody will do vash atmana, if somebody will control one's mind by endeavoring, by efforts, then what will happen? Then if one tries to control the mind, if one tries to control the mind, है ना, by proper methods, उपायता, राइट? सही उपाय से अगर कोई व्यक्ति ट्राई करेगा मन को कंट्रोल कर लेने का, तो श्योरली वो योगी बन पाएगा ना, वो कनेक्ट कर पाएगा सुप्रीम के साथ में, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे, है ना? पर वन हुज माइंड इज अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड मीन्स अनकंट्रोल्ड, सेल्फ रियलाइजेशन इज अ डिफिकल्ट वर्क, but he whose mind is controlled and who strives by the appropriate means is assured of the success. That is my opinion. तो लॉर्ड भी फिर से बोल रहे हैं, देखो कि यस डिफिकल्ट है माइंड, कोई व्यक्ति अगर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेगा तो उसके सेल्फ रियलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट रहेगा, पक्की बात है, दुष्प्राप है वो ना। तो फर्स्ट, तो कृष्णा इज फर्स्ट, अगेन कृष्णा इज अगेन अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कृष्णा इज टेलिंग द ट्रूथ, यस what you're telling is right, that if somebody will not be able to control the mind, then he cannot have self realization. But Krishna is also encouraging, what is the encouragement, that if somebody will try to control the mind, how? By proper methods, by the proper procedures, then one will be able to get one will be able to get success in the yoga. Okay, so the thing is that how this is very important, appropriate means. So see, for anything, if you want to get some good results,
then we have to follow a proper procedure for everything, right? Now, just by thinking or just by having a willpower will not be enough. You have to also take to the right procedures. For example, like somebody has got some health problem, let us say. So now, like suppose somebody has got fever. Now, just because of very strong determination, it's not that the fever is going to go on its own. No, one may have very strong willpower to get healthy, but then one will have to also exhibit that willpower in terms of taking the medication properly, taking the proper diets. You know. So if somebody do that, somebody follow that procedure properly, then one will be getting cured. Same way, Krishna is urging that how if somebody will follow the proper procedure, by following the proper procedure or by the right method, one will be able to control the mind. And for such a person, self-realization is possible. This is what Krishna is telling. So by appropriate means, one can control the mind. That's what Krishna is telling. Now, what are those appropriate means? See, यहाँ पे ना हमने बताया कि अभ्यास करना पड़ेगा. अभ्यास करने से हम लोग मन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? तो लेकिन ये जो अभ्यास वो एग्जैक्टली है क्या, वो अभी अगले जो सीरीज ऑफ जो चैप्टर्स आ रहे हैं, वेयर कृष्ण इज टेलिंग अबाउट द भक्ति योगा. दैट्स द राइट अभ्यास. भक्ति योगा करके अपने माइंड को कृष्ण में फिक्स करके, जिस भगवद गीता 8.14 वगैरह आप देखोगे तो कृष्ण सेज दैट हाउ वन कैन वेरी इजीली अचीव मी सुलभम पार्थ. हाउ इफ somebody will try to fix up his mind upon me. So the right way or the proper way to control the mind is by fixing one's mind upon Krishna. That's Krishna, that Krishna is going to establish in the further section, in the further chapters. So that is what Krishna is referring here. That if somebody will try it with appropriate means, then one will be able to have success. That is my opinion. Yeah, please read the purport. बिल्कुल पढ़ो कोई भी पढ़ो. The Supreme Personality of God. बोलो अभिषेक को बोलो. The Supreme Personality of Godhead declares that. Just a minute. आपको छोड़ के बाकी को म्यूट करना Supreme पड़ेगा. Personality of Godhead declares that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material engagement can hardly achieve success in self-realization. Trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it. Yoga practice without mental control is a waste of time. Such a show of yoga may be materially lucrative, but it is useless as far as spiritual realization is concerned. Therefore, one must control the mind by engaging it constantly in the transcendental loving service of the Lord. Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor. But a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna conscious. So somebody is wanting to be a yogi but getting involved into sense gratification again, then he will not be able to control the mind. That's what Prabhupada is making out. So in any ways, point is that how if somebody wants to perform the yoga, then one has to follow the proper way. Then one will be able to have control of the mind. Otherwise, it is not. So like that Krishna has again told, emphasized upon it. Okay. So now again Arjuna is going to further ask another question, for which Krishna is going to answer. So now see, so Krishna told that how one has to practice properly and one has to also follow detachment. Then one will be able to control the mind and then one can perform the yoga. So now Arjuna is thinking that now this thing looks to be very long. It may take a very long time to be able to constantly practice and to trying to be detached. It will take a lot of time. So that means that it may take a lot of time for one to be able to complete the yoga. Now suppose in case if a person stops the yoga before being able to achieve the perfection, a person has started yoga, but suppose because of some uncontrolled mind, again suppose he falls down, he stops the yoga now without completing it, then what is going to happen to him? That is the next question of the Arjuna. So see, Arjuna is asking, Arjuna uvacha ayatihi shraddhayopeto yoga chalitamansah अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छते. Right, so Arjuna asking, you see, ayati hi shraddhayo upeto yogas chalita manasah. Right, ayati means जिसने perfection प्राप्त नहीं किया. यति होता है ना सन्यासी और परफेक्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट. अयति मीन्स जिसने
परफेक्शन प्राप्त नहीं किया है ना। श्रद्धया उपेतो, राइट। तो ना, सो वन वाज प्रैक्टिसिंग द योगा ना, वन टुक टू द योगा और वन वाज फॉलोइंग द योगा विथ फेथ, श्रद्धयो उपेतो। वन वाज वन हैज टेकन टू द प्रैक्टिस ऑफ द योगा ना विथ फेथ, वन वाज फॉलोइंग, but what happens is yoga chalita manasah, but because of the chalita na, because of the deviation by the mind, because of the deviation from the mind, one may give up that practice, मन में गिव अप दैट प्रैक्टिस है ना। योगस चलित मानस, राइट। क्या है, मन उसको मन ने उसको पूरा भटका ही दिया, मन ने उसका योगा स्टॉप करवा दिया ना, चलित मानस, राइट। मन चला गया, योग कर रहा था बट मन उसको खींच के कहीं और वापस लेके चला गया, योगा से दूर लेके चला गया, ना। अप्राप्य अप्राप्य योग संसिद्धिम, तो ऐसे व्यक्ति को जिसने योगा स्टार्ट किया था फिर से, लेकिन क्या हो गया, उसके मन ने उसको योगा से हटा दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसने योगा स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा, अप्राप्य योग संसिद्धिम, तो उसको तो सिद्धि नहीं मिला, सिद्धि मीन्स परफेक्शन, तो वो तो परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर पाया योगा का, जो परफेक्शन होना चाहिए था ना, वेदर इट बी द परमात्मा दर्शन और वेदर इट बी द रियलाइजेशन ऑफ द ब्रह्म ज्योति, वो तो हो नहीं पाया। तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो फिर उसका क्या गति होगा ना, क्या उसका उसका क्या फ्यूचर होगा। जिसने योगा स्टार्ट किया फेथ के साथ में, बट कुछ समय के बाद में योगा छोड़कर वो चला गया, मान लीजिए उसने योगा करना बंद कर दिया, तो उसको तो परफेक्शन तो मिला नहीं योगा का, जो डिजायर्ड आउटकम मिलना चाहिए था योगा का, विच वाज लिबरेशन, वो तो मिला नहीं, तो उसका क्या डेस्टिनेशन होगा, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ अर्जुना ना। एंड व्हाट वाज द कनेक्शन, बिकॉज previous to this Krishna has told that how it can happen by practice and by detachment, but such a practice and detachment to control the mind may take a lot of time, so then one will get distracted, there's a good chance that one may get distracted before being able to come to that perfection, right। जैसा कि हम देखते भी हैं, बहुत सारे डिवोटी स्टार्ट करते हैं भक्ति भी चाहे हो, लेकिन छोड़ के चले जाते हैं बीच में, क्योंकि क्या हो गया, मन उनका चंचल जो मन था वो उनको वापस लेके चला जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, ये पूछ रहे हैं अर्जुन, है ना। यहाँ पे है ना, वैष्णव जी बताएं, ओ कृष्णा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ वन हु दो हैविंग फेथ डज नॉट कंटिन्यू द एंडेवर बिकॉज ऑफ द अनस्टडी माइंड एंड डज नॉट अटेन द गोल ऑफ योगा, इट इज समाधि, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर अपना एंडेवर करना छोड़ देता है ना, फेथ तो है उसको, लेकिन फेथ तो था, लेकिन उसने अपना एंडेवर करना बंद कर दिया, क्यों, बिकॉज मन उसका उसको खींच के कहीं और लेके चला गया, तो उसका क्या गति होगा, ऐसा बता रहे हैं ना। So yeah, please read this blue part, purport. Following any of the above mentioned three methods, one is sure to reach the supreme goal sooner or later. This was asserted by the Lord in the second chapter. Even a little endeavor on the transcendental path offers a great hope for deliverance. Out of these three methods, the path of Bhakti Yoga is especially suitable for this age because it is the most direct method of God realization. To be doubly assured, Arjuna is asking Lord Krishna to confirm his former statement. One may sincerely accept the path of self-realization, but the process of cultivation of knowledge and the practice of eightfold yoga system are generally very difficult for this age. Therefore, despite constant endeavor, one may fail for many reasons. First of all, one may not be sufficiently serious about following the process. To pursue the transcendental path is more or less to declare war on the illusory energy. Consequently, when a person tries to escape the clutches of illusory energy, she tries to defeat the practitioner by various allurements. A conditioned soul is already allured by the modes of material energy, and there is every chance of being allured again, even while performing transcendental disciplines. This is called Yoga Chalati Manasa, deviation from the transcendental path. Arjuna is inquisitive to know the result of deviation from the path of self-realization. So Prabhupada is bringing out the point at how, see, what are these three paths, these three methods में, the path of Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. Right? This Dhyan Yoga is also part of the, like, ज्ञान योगा ही कह सकते हैं हम इसको। Of course, कर्म योगा को ही ज्ञान योगा बोला जाता है। कर्म योगा, as one practices the कर्म yoga, so the culmination is what a person gives up performing any activities that turns to the ज्ञान योगा। जनरली अगर हम लोग योगा बोलते हैं तो एक है ज्ञान योगा, दूसरा ये ध्यान योगा, तीसरा है भक्ति योगा, एसेंशियली, कर्म योगा इज ऑल्सो, कर्म योगा जब व्यक्ति एडवांस होता है कर्म योगा में, तो ज्ञान योगा को फॉलो करता है, इसलिए तो ज्ञान योगा, अष्टांग योगा एंड भक्ति योगा। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे
इन तीनों में से कोई भी किसी को भी फॉलो करेगा तो श्योरली वो जो भी एडवांसमेंट करेगा वो उसके साथ में परमानेंटली रहेगा, उसको कुछ लॉस नहीं होने वाला है, राइट। और वो व्यक्ति क्यों छोड़ देगा कुछ समय के बाद में, यहाँ पे बताया कि वन मे नॉट बी सफिशिएंटली सीरियस अबाउट फॉलोइंग द प्रोसेस, राइट। तो शुरू में तो उसने भक्ति तो स्टार्ट किया, या शुरू में उसने योगा तो स्टार्ट किया, लेकिन क्या हो गया उसका, है ना, जो एफर्ट लगाना था उसके वो डिटरमिन्ड नहीं रहा, राइट ना। तो जैसे भगवान ने बताया कि अभ्यास एंड वैराग्य, राइट। तो शुरू में तो उसने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ में योगा को लिया, लेकिन बाद में क्या है, वो इतना स्ट्रांगली एफर्ट नहीं लगा रहा है, अभ्यास नहीं कर रहा है ना, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तैयार अच्छे से फॉलो नहीं करने का ट्राई कर रहा है। और जो उसका जो वैराग्य है वो भी थोड़ा सा भी मंद हो गया है, पर ढीला हो गया है वैराग्य। अगेन वो थोड़ा जो सेंस ऑब्जेक्ट्स उसको फिर से अट्रैक्टिव लग रहा है, फिर से उनके पास जाने का उसका मन कर रहा है, राइट। तो ये मेन कारण है कि जो व्यक्ति का जो अभ्यास थोड़ा कमजोर हो जाता है, और जो थोड़ा उसका जो डिटैचमेंट है वो भी वीक पड़ जाता है, तो फिर व्यक्ति ऑब्वियसली वो योगा को फॉलो नहीं कर पाएगा, है ना। और एक और चीज यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि कैसे, हाँ, है ना, डिफिकल्ट क्यों भी होता है, क्योंकि माया भी बहुत स्ट्रांग है। और माया क्या करती है, टेस्ट करना चाहती है कि हम लोग कितना हम डिटरमाइंड है कि नहीं है। तो इसलिए माया भी थोड़ा स्ट्रांग, है ना, माया भी स्ट्रांग टेस्ट रखती है ना, एक बिगिनर के लिए, ये चेक करने के लिए कि वो सही में सीरियस है कि नहीं है। So if a person if a person is very sincere, then he will be able to cross all the tests of the Maya, and he will become more and more solidified in his progress in his faith. But if somebody is not, somebody is weak-minded, then he will get carried away. तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है ना। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है ना, कि विश्वास ठाकुर भी वही बता रहे हैं ना। ही स्टार्ट्स द प्रैक्टिस ऑफ द योगा विद फेथ इन द योगा स्क्रिप्चर्स एंड इज देयरफॉर नॉट एन इम्पोस्टर, राइट। तो उसको फेथ था इसलिए उसने स्टार्ट किया, but he deviates from the yoga, for his mind turns to the objects of enjoyment because of lack of practice and detachment, right? क्योंकि कम अभ्यास करता है, कम वैराग्य, अभ्यास कम करेगा, वैराग्य कम होगा, तो क्या होगा, मन ऑब्वियसली एंजॉयमेंट्स की तरफ जाएगा ही जाएगा। जैसे हमारे केस में भी, तो अगर ध्यान से चैंटिंग नहीं करेगा, श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, ये जो प्रैक्टिस की कमी होगी उसके कारण क्या होगा, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए जो अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा ना, तो फिर वो ऑब्वियसली बात है कि योगा को नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे ना, राइट। अगेन अर्जुन फर्दर इसी में पूछ रहे हैं, है ना, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति का क्या स्थिति कैसे होगा, पूछ रहे हैं ना। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति, राइट। कच्चिन न उभय विभ्रष्ट, है ना, छिन्ना अभ्रम इव नश्यति। right? अभ्रम का मतलब होता है कि क्लाउड, बादल, है ना। छिन्ना मतलब कि जो अलग थलग हुआ है ना। हाँ, इव नश्यति, right? कच्चिन न उभय विभ्रष्ट, उभय मीन्स बोथ, अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्राह्मण्य पति, राइट। क्या मतलब इसका बता रहे हैं, देखिए। ओ mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both the spiritual and the material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? ना? क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए। बोले हैं कि देखिए, कभी कभार इन द क्लाउड व्हाट यू सी, सपोज क्लाउड में अपने आकाश में देखा, क्लाउड आकाश में आपने देखा कि दो बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स हैं, दो बहुत बड़े बड़े बादल हैं, लटकते हैं ना। तो दो बड़े बड़े बादल हैं, और उसमें से जो एक बादल था, उसमें से जो एक छोटा सा जो उसका जो एक पार्ट था, वो उससे अलग होता है ना, वो उससे अलग होता है, और वो दूसरे बादल की तरफ जा रहा होता है, मान लीजिए, है ना। लेकिन अचानक से मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग विंड अगर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये जो छोटा सा जो पार्ट है क्लाउड का, है ना, वो अलग अलग थलग चला जाएगा ना, वो इस क्लाउड के पास पहुंच पाएगा ना, इस क्लाउड के पास रहा ना, तो इस क्लाउड के पास में रहा ना, यहाँ पे पहुंच पाया, वो कहीं अलग थलग ही लॉस्ट हो गया। ऐसा होता है क्लाउड, ऐसा ऐसा। तो वैसे वो बता रहे हैं कि जो योगी है, अ पर्सन हु टेक्स टू द योगा, तो व्यक्ति जो योगा है, तो पहले वो पूरा मटलिस्टिक लाइफस्टाइल में था, मटल एंजॉयमेंट में था। लेकिन व्हेन वन वांट्स टू डू योगा, तो योगा में शुरू में ही ना, कि कैसे वन हैज टू गो टू द फॉरेस्ट ना, वन हैज टू गिव अप द एंजॉयमेंट्स, वन हैज टू फॉलो ब्रह्मचर्य। So one is giving, one gives us the material enjoyments, one gives up endeavoring for the material enjoyments, and one is trying to pursue the spiritual happiness, one is trying to pursue the liberation। तो जैसे दो क्लाउड है, एक क्लाउड है ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ का कह सकते हैं, या फिर मटेरियल एंजॉयमेंट का, और दूसरा है स्पिरिचुअल परफेक्शन का, या फिर लिबरेशन का, मुक्ति का, है ना। तो एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया अपना जर्नी, इस क्लाउड से वो दूर जाने लगा, मटेरियलिस्टिक लाइफ से उसने दूर जाना स्टार्ट किया। लेकिन इससे पहले कि वो लिबरेशन की तरफ पहुंच पाता, इस क्लाउड को ज्वाइन कर पाता, उससे पहले क्या हो गया, उसके माइंड ने उसको वापस चंचलता से उसको हटा दिया,
तो वो तो ना तो यहाँ का ना तो घर का रहा ना घाट का रहा, विच मीन्स व्हाट ना, बिकॉज ही वॉज नॉट वर्किंग फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, राइट। अगर उसको मटेरियल एंजॉयमेंट करना है, सो द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द मटेरियल एंजॉयमेंट इज अवेलेबल इन द हेवन, राइट। स्वर्ग में जा सकता है वो, राइट। तो स्वर्ग में जाने के लिए उसको कर्मकांड करने की जरूरत है। तो अभी क्या है, लेकिन वो कर्मकांड नहीं कर रहा था, कर्मकांड नहीं कर रहा था, मटेरियल लाइफ के लिए भी एफर्ट नहीं लगा रहा था, मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए एफर्ट नहीं लगा रहा था, राइट ना। तो क्या हुआ, उसे मटेरियल एंजॉयमेंट भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसने कर्मकांड भी नहीं किया है, मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए वर्क भी नहीं किया, इसलिए क्या होगा, मटेरियल हैप्पीनेस भी नहीं मिल पाएगी उसको, स्वर्ग में भी नहीं जा पाएगा वो, और उसको लिबरेशन भी नहीं मिल पाएगा, मुक्ति भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका परफेक्शन भी नहीं हुआ है स्पिरिचुअल लाइफ का। तो वो ये बता रहे हैं कि उसका जो सिचुएशन हो गया वो तो एक है ना, वैसे वैसे जो एक रिवन क्लाउड है, ऐसा क्लाउड जो बादल से टूट के कहीं छूट गया है, उसका सिचुएशन तो वैसा हो जाएगा। ये कृष्णा से पूछ रहे हैं, है ना। अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मणपति, राइट। जो ब्रह्मणपति जो योगा के पास से डिवेट हो गया, विमूढ़ हो गया है, राइट, वो क्या हो गया ना, उभय विभ्रष्टस छिन्ना अभरम इव नश्यति, राइट। तो उसका तो नाश हो जाता है एक तरीके से, एक रिबन क्लाउड की तरह, लाइक इट इज टेलिंग, यू नो। प्रॉपर परपट में पढ़ो ब्लू वाला पार्ट। When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness. If the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways. In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. He has no position. He is like a raven cloud. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if one cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a non non-entity and it in the vast sky. हाँ, तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता, राइट ना। तो देखिए यहाँ पे दो चीज, एक चीज तो समझने वाली बात है कि व्हाट इज द मीनिंग दैट मटल सी ही इज नॉट वर्किंग फॉर द मटल सक्सेस। तो वो मटल एंजॉयमेंट भी नहीं कर पाया, और जो मटल एंजॉयमेंट के लिए कर्मकांड करने की जरूरत पड़ती है स्वर्ग में जाने के लिए, वो भी उसने नहीं किया, है कि नहीं। तो इसलिए वो स्वर्ग में भी नहीं जा पाएगा, ये वाला पॉइंट, राइट। तो उसको वो जो जो हाईएस्ट मटल हैप्पीनेस भी जो पॉसिबल था, वो भी नहीं पा पाएगा, एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन भी उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि फिर उस योगी का क्या होगा, है ना। उसका तो सिचुएशन बड़ा अजीब सा हो गया, ऐसा वो पूछ रहे हैं, है ना। तो, तो नेक्स्ट श्लोक है ना। तो अभी फर्दर ये इस श्लोका में वो रैप अप कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को ना। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द भगवत गीता, 3-4 श्लोकों में जो कंटिन्यू हुआ है ना। बोले एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः तद अन्य संशयस्य छेता न ही उपपद्यते, राइट। एतन्मे संशयं कृष्ण, ये मेरा संशय है कृष्ण, छेतुम अर्हसि अशेषतः, अशेषतः मतलब कि कंप्लीटली, आप इसको खत्म कर दीजिए, इसको कंप्लीटली खत्म कर दीजिए ना। त्वद अनय, त्वद अन्य, आपके अलावा, संशयस्य, राइट, आपके अलावा, छेता ना ही उपपद्यते, राइट, आपके अलावा और कोई इस संशय को दूर करने वाला बेस्ट व्यक्ति कोई है नहीं, ऐसा वो बता रहे हैं, है ना। दिस इज माई डाउट ओ कृष्ण एंड आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कंप्लीटली, बट फॉर यू नो वन इज टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट, बोल रहे हैं। तो अगेन वो कृष्णा की पोजीशन को एम्फेसिस कर रहे हैं कि हाउ, बिकॉज कृष्णा इज द ऑल नोइंग। Before this, only Krishna has told it how never was a time when you were not there, I was not there, all these people were not there. So the point is that how Krishna knows about the past, present, and future. Because Krishna is the only one who knows about the past, present, and the future. He's the omniscience. He's omniscient. Omniscient means all knowing. So that's why Arjun is telling that, because you are omniscient, you are all knowing, you can know about the future. So I'm asking you that please tell me what is going to happen to such kind of person. Okay. Purpose purport is also same centered around this, that how Krishna can knows about the past, present, and the future perfectly. That's why Krishna is the best person to answer this question. Okay. So now Lord will give answer to this question. Shloka number 40. Sri Bhagavan uvacha पार्थनेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। वेरी 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 होप गिविंग वर्स है ये, है ना। पार्थ न न न एव न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, राइट। पार्थ मतलब कि अर्जुन, है ना। न न एव इह, न एव इह, न एव मीन सर्टनली, इह मीन्स यहाँ, एंड ना अमुत्र, अमुत्र मतलब कि वहां पे ना, विनाशस तस्य विद्यते, है ना। ओ डियर अर्जुना, फॉर सच अ योगी who has deviated or who has fallen down,
for him there is no destruction, there is no vinash, either in this world nor in the above world, उसका कोई लॉस नहीं होगा ना, तो इस वर्ल्ड में उसका कोई लॉस होगा ना, उसको जो फर्दर जो उसको लिबरेशन के पास जाना था, उस वर्ल्ड में जो जाना था, उसके लिए भी उसका कोई लॉस नहीं होगा, ऐसा बता रहे हैं, राइट ना। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम कृताद कश्चित, राइट। ये कल्याणकृत, कृत का होता है कि कर्म, कल्याण मतलब कि ऑस्पिशियस, कल्याणकारी कार्य जिसको बोलते हैं, राइट ना। तो कोई भी अगर कल्याणकारी कार्य को करता है, एनीवन हु इज परफॉर्मिंग ना सच काइंड ऑफ ऑस्पिशियस एक्टिविटी, what kind of auspicious activity? The activity of yoga. Now, anyone who is following the path of yoga, the path by which he can connect with the supreme, है ना कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, न ही कल्याणकृत कश्चित, right? कोई भी इस तरीके के ऑस्पिशियस पाथ को अगर कोई फॉलो करता है, योगा के पाथ को फॉलो करता है, तो सिर्फ दुर्गति नहीं होगी। तात मतलब है कि तात मतलब कि बेटा, बेटे के लिए यूज करते हैं तात, एक बहुत प्रेम से भगवान बोले कि बेटा देखो, है ना, कोई भी व्यक्ति अगर, है ना, इस ऑस्पिशियस पाथ को फॉलो करता है, योगा के पाथ को फॉलो करता है, तो उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होगी, उसका कोई लॉस नहीं होगा, कोई उसका ऐसा बुरा सिचुएशन नहीं होगा, राइट। दुर्गति क्यों वर्ड क्यों रहे हैं? क्योंकि पहले अर्जुन ने बोला कि अरे उसका तो दुर्गति हो गया ना, यहाँ करा ना वहां करा। बोले नहीं नहीं नहीं, जो भी इस कल्याणकारी पाथ को फॉलो करता है, ये जो योगा का पाथ है ना, ये कल्याण का पाथ है, ये व्यक्ति के रियल वेलफेयर का काम है। कल्याण मीन्स वेलफेयर, दिस इज द दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द रियल वेलफेयर। जो भी इसको करता है उसका कभी भी क्या होता है, तो दुर्गति नहीं होती है, भगवान बता रहे हैं। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, सन ऑफ पृथा, a transcendentalist engaged in the auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by the evil. तो जो भी इस तरीके से कल्याण कार्य करेगा, उसका कुछ विनाश नहीं होगा, कुछ दुर्गति नहीं होगी, ना तो इस संसार में ना परे संसार में, ऐसा वो बता रहे हैं, राइट। जैसे कृष्ण इज गोइंग टू गिव द फिलोसफी, कृष्ण बताएंगे कि कैसे उसकी दुर्गति नहीं होती है। बट शुरू में भगवान क्या कर रहे हैं, उसको अर्जुन को कॉन्फिडेंस देने के, देखो देखो ना, ये इसको बोलते हैं इमोशनल एश्योरेंस देना। बिफोर इवन गिविंग द फिलोसफी, कृष्ण इज गिविंग हिम इमोशनल एश्योरेंस, जैसे कोई डिवोटी किसी सिचुएशन में है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में, राइट, तो इमीडिएटली फिलोसफी नहीं देना चाहिए, पहले उसको सोलिस करना होता है, राइट ना। प्रभु आप चिंता मत करो, देखो सब ठीक होगा, चिंता मत करो। कोई डिवोटी का सपोज घर पे किसी का डेथ हो गया, या कोई डिवोटी का बहुत हेल्थ का बड़ा क्राइसिस हो गया, तो प्रभु चिंता मत करो, आप देखो सब ठीक होगा, आप चिंता मत करो, लॉर्ड है ना, सबके बहुत वेलविशर है, क्यों। तो पहले हमें थोड़ा इमोशनल एश्योरेंस देना चाहिए लोगों को, उसके बाद हमें फिर फिलोसफिकल एंगल से बताना चाहिए। तो हम भी ये कर रहे हैं कि इमोशनल एश्योरेंस देने के, देखो ऐसे व्यक्ति का कभी भी कोई नाश नहीं होता है, ना वो बता रहे हैं। तो पर्पट में प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं भागवतम का वेरी फेमस श्लोक है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि यत्र क्वाप भद्रम अभुत कि अमुस्त किम को वार्थ आप तो भजतम स्वधर्मता, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें बताया जा रहा है कि देखिए ना, ना, if someone gives up all the material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything, है ना। तो कोई व्यक्ति ने अगर पूरी तरीके से भक्ति करने के लिए, पूरी तरीके से योगा करने के लिए, सपोज उसने अपना सारा मटेरियल ड्यूटीज वटीज को सब साइड में रख दिया, छोड़ दिया मान लीजिए, तो भी कोई लॉस नहीं है। भले अगर वो पूरी तरह से उससे परफेक्शन नहीं भी प्राप्त कर पाता है, तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। इसके बजाय कोई व्यक्ति बहुत परफेक्टली अपने सारे मटेरियल ड्यूटीज को फॉलो कर रहा है, बट स्पिरिचुअल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है मान लीजिए, राइट, तो उसका कोई फायदा नहीं है। भले वो बहुत अच्छा ड्यूटीफुल, बहुत अच्छा बिजनेसमैन, बहुत अच्छा हस्बैंड क्यों ना हो, बट अगर वो स्पिरिचुअल माइंडेड नहीं, स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके परफेक्शन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसके बजाय कोई व्यक्ति अगर अपने मटेरियल ड्यूटीज को भी उसने साइड में रख के वो पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट कर रहा है योगा के लिए, तो देन 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 देयर इज नो लॉस अबाउट दैट, बिकॉज दोनों का लेवल अलग रहेगा। और सच्चा पर्सन जिसने योगा करने के लिए या फिर भगवान को शरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया अपने मटेरियल ड्यूटीज को, है ना, ही इज गोइंग टू गेन स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, एंड दोज स्पिरिचुअल क्रेडिट्स आर गोइंग टू बी परमानेंट विथ हिम। ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन हु इज वेरी नाइसली टेकिंग केयर ऑफ द मटेरियल लाइफ, right now he will get only some material credits, some material benefits, but they're temporary, they're not going to go with him, and he has not accumulated any special benefits. तो इसलिए कोट यहाँ पे श्लोक करें, राइट, पढ़िए यहाँ से, फॉर मटेरियल प्रॉस्पर्स यहाँ से, For material prospects, या for material prospects, there are many activities, both spiritual and customary. A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, Krishna consciousness. One may ask that by Krishna consciousness, one may attain the highest perfection if it is completed. But
If one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. It is enjoined in the scriptures that one has to Okay. suffer the reactions for not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalist that there no need to be worries. Even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing prescribed duties, he is still not a loser because auspicious Krishna consciousness is never forgotten. And one so entangled, one so engaged will continue to one so engaged will continue to be so even if he is low born in the next life. On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious result if he is lacking in Krishna consciousness. Yeah, so point is that how the material duties will not give us any special benefits, any permanent benefits. And on the contrary, the special activities are going to give us special benefits, and they will not be destroyed, they will be our eternal, they will be like our eternal treasure, eternal wealth, like whatever special advancement we are going to make, that continues with us, that's what Krishna is again, just like, Neha Bhikrama Nashosti, this shloka is also like, same way it is again reassuring that how whatever special progress one will make, that will be no loss about that. See, please read this part also. Okay, ठीक है. I think I will explain this. So, Prabhupada is mentioning about these three types of paths are there. First is the path of the karma, the followers of the scriptural rules and the regulations who are enjoying the material prosperity. Right? So they are basically those who are on the path of karma. So those are path of the karma mein, they can be karma kandis or they can be karma yogis. Okay. Then those who are trying to find the ultimate liberation from the material, these are the path of jnanis, जो मुक्ति पाना चाहते हैं. एंड देन देयर आर भक्तास, राइट. तो तीन पाथ हैं, द पाथ ऑफ कर्मा, द पाथ ऑफ ज्ञान एंड द पाथ ऑफ द भक्ति, है ना. उसमें भी जो पाथ ऑफ कर्मा में भी दो कैटेगरीज हो गया. एक होंगे पाथ ऑफ कर्मा में, एक तो हो गया जो कर्म कांडीज हैं. कर्म कांडी मीन्स जो सिर्फ मटेरियल प्लेजर्स के लिए काम करते हैं. दूसरे जो कर्म योगीज हैं, दोज हु आर परफॉर्मिंग कर्म योगा, हु आर आल्सो गिविंग सम फ्रूट्स ऑफ द रिजल्ट्स फॉर द सुप्रीम. बता रहे हैं भगवान पापा यहाँ पे बता कि उनमें से कौन सा किसको ऑस्पिशियस पाथ बोला जाएगा, ट्रूली ऑस्पिशियस पाथ, तो देखिए ज्ञान योगा का पाथ ऑस्पिशियस पाथ है, क्योंकि देखिए एनी पाथ विच विल बी एबल टू हेल्प यू गेट लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज ऑस्पिशियस पाथ. तो जो पाथ ऑफ कर्म कांड है, कर्म कांड इज नॉट एन ऑस्पिशियस पाथ. वाई? बिकॉज यू आर स्टिल बाउंड अप इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ओनली. बट द पाथ ऑफ कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा, दे आर ऑल ऑस्पिशियस पाथ. उसी को एक्सप्लेन करने हैं पापा जी यहाँ पे कि जो कल्याणकृत जो पाथ बताया गया है, ऑस्पिशियस, रियल ऑस्पिशियस पाथ है, उसमें क्या क्या आएंगे? कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, भक्ति योगा. दिस विल बी ऑल ऑस्पिशियस पाथ. बाय? बिकॉज one is no more entangled in the material life, but one is going beyond this material life. So that's why they are the auspicious path, है ना. तात के बारे में तो कृष्ण भगवान थोड़ा प्रेम प्रेम के साथ में उसको इसलिए तात बोला गया है यहाँ पे ना, अर्जुन के लिए. तो अभी देखिए भगवान एक्सप्लेन करेंगे क्यों उसका दुर्गति नहीं होता है, भगवान बता रहे हैं. राइट, बहुत अच्छा है. प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती स्तमः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते. राइट. तो क्या होता है ऐसे योगी का जिसने योगा प्रैक्टिस कर रहा था, बट उसने बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड अगेन ही फॉल बैक टू द मटेरियल लाइफ. क्या होगा? प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वती समः. राइट. वो क्या क्या प्राप्त करता है? वो पुण्य कृतम लोकान. राइट. जो पुण्य कर्म करने वाले जो लोग हैं, राइट, स्वर्ग लोक हैं, जो जिनके पास में पुण्य कर्म होते हैं, वो लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं. तो वहां पे उसको जाने का मौका मिलता है ना. शाश्वती समः, कितने समय के लिए? शाश्वत काल के लिए. शाश्वत मतलब कि बेसिकली बहुत लंबे समय के लिए. जो देवता होते हैं, देवताओं की जो उम्र होती है काफी लंबी होती है, उससे शाश्वत वर्ड यूज किया कि बहुत लंबे समय के लिए, सच अ पर्सन जो मटेरियल एंजॉयमेंट पाने के लिए डिवेट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, ही विल बी एबल टू गो टू द हेवंस, और वहां पे जाके एक लंबे समय के लिए वहां पे एंजॉयमेंट करेगा. और करने के बाद फिर वो वापस क्या होगा? शुचिनाम श्रीमताम गेह मतलब कि घर. वो एक शुचिनाम श्रीमताम व्यक्ति के घर पे वापस जन्म लेगा. योग भ्रष्टो अभिजायते. अभिजायते मीन्स ही टेक्स बर्थ, तो सच अ पर्सन, he will again, after enjoying for many time, for many years in the heavenly planets, again he will come back to the earth
again he will be born into the family of these two categories of the people. एक है शुचि, एक है श्रीमताम. शुचि मतलब होता है कि साफ सुथरे, क्लीन, अपने हैबिट्स में क्लीन, मतलब कि पायस लोग, पुण्यवान लोग, जो किसी प्रकार के सिंफुल एक्टिविटीज नहीं करते हैं. तो या तो वो किसी पुण्यवान व्यक्ति के घर पे जन्म लेगा, ना पुण्यवान घर पे जन्म लेगा तो मतलब बचपन से उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे ना, ही विल नॉट हैव एनी बैड इंप्रेशन, बचपन से उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे, मंदिर जाना है ना, बड़े बूढ़ों का आदर करना है, गीता भागवत को सुनना चाहिए, साधुओं का सम्मान करना चाहिए, राइट. तो उसे अच्छे संस्कार मिलेंगे. गंदी मूवीज देखना, ना गंदी बातें बोलना, है ना, ये सब चीजें नहीं करने को मिलेगा उसको, है ना, डर्टी इंप्रेशन नहीं मिलेंगे उसको बचपन में. तो या तो ऐसे सुशीना फैमिली में जन्म लेगा, या फिर श्रीमताम, श्रीमत होता है कि लक्ष्मी जी, पैसा, ऐश्वर्य, या फिर किसी धनी परिवार में उसको जन्म मिलेगा. तो ये बताएगा कि ऐसा योगी जो होगा उसका कोई दुर्गति नहीं होगा, और वापस जब वो वापस एंजॉयमेंट करने के बाद वापस से यहीं पे आने का मौका मिलेगा. और यहाँ पे किस तरीके के फैमिली में जन्म लेने का मौका मिलेगा, शुचिना में श्रीमताम फैमिली में जन्म लेने का मौका मिलेगा. तो कोई बोलेगा कि जो ये है ना, क्या बोलते हैं, क्या फायदा है इसका, इस तरह के जन्म लेने का क्या फायदा है. देखिए, कोई व्यक्ति अगर भक्ति करना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर योगा करना चाहता है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना चाहता है, तो अभी क्या देखिए, सोल है. इफ somebody wants to advance, somebody wants to make progress, soul's progress, so that is dependent upon, our mental situations, and it is also dependent upon the bodily situations, right. हमारा जो बॉडी है और जो हमारा माइंड है, वो दोनों चीजें इम्पैक्ट करती है हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को, हमारे सोल को, राइट. तो देखिए मेंटली कैसे करता है, माइंड कैसे हमें करता है, राइट. माइंड में जो भी हमने इंप्रेशन स्टोर कर रखे हैं, जिन्हें कंडीशनिंग्स बोलते हैं, राइट, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, इल्यूजन, ये सारी जो चीजें हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ अवर कंडीशनिंग्स, है ना, संस्कार जो होते हैं हमारे, राइट. जो हमने जिस तरीके की चीजें की हैं पहले लाइफ में, वो सारे जो इंप्रेशन है, राइट, इस लाइफ में भी हमने बचपन से किस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहे, किस तरीके की एक्टिविटीज हमने की, ये सारे हमारे इंप्रेशन हमारे मन में स्टोर्ड रहते हैं माइंड में, है ना. तो अभी मान लीजिए बचपन से किसी के गंदे गंदे एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा, गंदी एक्टिविटीज उसने की हैं, तो वो सारे गंदे इंप्रेशन, दे विल पोज अ वेरी ग्रेट ऑब्स्टिकल फॉर वन स्पेशल एडवांसमेंट, है ना. लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूचना फैमिली में जन्म लेगा, तो बचपन से उसको कूड़ा करकट उसके मन में नहीं गया होगा, उसका मन थोड़ा साफ सुथरा रहेगा, तो उसके लिए भक्ति करना आसान होगा, भक्ति को पकड़ना उसके लिए आसान हो जाएगा, योगा करना उसके लिए आसान हो जाएगा, राइट. तो ये एडवांटेज है सूचना फैमिली में जन्म लेने का, राइट. क्या होगा कि मेंटली जो गंदे इंप्रेशन थे वो उससे बच जाएगा ना, उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे बचपन से, राइट, उसके लिए आसान होगा योगा को फॉलो कर पाना. और श्रीमंताम फैमिली में क्यों जन्म मिलता है, उसका क्या एडवांटेज है, राइट. तो एक तो क्या, मेंटल डिफिकल्टीज आती हैं, या फिर बॉडीली क्या है, बॉडीली मतलब कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट. कोटोटी कपड़ा मकान. तो कहीं मान लीजिए कोई सपोज इफ समबडी इज बोर्न इनटू अ फैमिली जहाँ पे कि खाने पीने की भी दिक्कत है, पैसा वैसा भी नहीं है मान लीजिए, राइट. तो क्या होगा, इतना सारा समय उसको खाना पीना बटोरने में चला जाएगा कि उसके पास समय ही नहीं रहेगा योगा वोगा के बारे में सोच लेने का भी. कई गरीब लोगों से अगर आप बोलोगे थोड़ा सा गीता पढ़ो, बोला टाइम ही कहाँ है हमारे पास में, स्वामी जी सुबह से शाम तक है ना मेहनत करते रहते हैं. दोनों कैटेगरी, जो बहुत बहुत ज्यादा अमीर हैं वो लोग भी भक्ति नहीं लेते हैं, और जो बहुत एकदम गरीब है वो लोग भी भक्ति नहीं ले पाते हैं, राइट. गरीब क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इतना उनके पास में भुखमरी है, इतना उनके पास में गरीबी है कि उनके लिए जीवन जीना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल है, खाना पीना सोना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल है. और जो बहुत अमीर है उनके पास में इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि नीड ही नहीं फील होती है कि हमें कुछ और चाहिए. हाँ. तो खैर, तो ये एडवांटेज है, मतलब श्रीमता में अच्छे फैमिली में जन्म, अच्छे धनी परिवार में, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म लेगा, तो उसको अपना मेंटेनेंस के बारे में सोचना नहीं है, उसका दिमाग ठंडा है, तो उसको आप आराम से ना, आराम से उसको अगर चाहे तो उसको योगा, अगर वो योगा को फॉलो करना चाहे तो थोड़ा आराम से ले सकता है, राइट. हमारा एक्सपीरियंस है, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स लोग थोड़ा पीसफुल माइंड से भक्ति ले पाते हैं, right? बाकी जहाँ पे वो टफ रहता है प्लेसमेंट का सिचुएशन, वहाँ पे पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ एंजाइटी अबाउट इट, and then they are not able to become very serious because of not being able to follow seriously these practices. तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे जो योगी है ना, after enjoying in the heavens he will again come back and he will be able to have birth in either of these families. या तो बहुत धनवान फैमिली में जन्म लेगा, या फिर बहुत पुण्यवान फैमिली में वो जन्म लेता है ना, बता रहे हैं. यहाँ पे देखिए एक दो चीजें मैंने लिखी हैं. तो देखिए जो भी सारे बीइंग्स हैं, सारे प्राणी है इस वर्ल्ड में, उनको आप तीन चार कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो, राइट. एक तो होते हैं नित्य नित्य नित्य, मतलब कि जो हमेशा से, नित्य पीपल, नित्य जीव कौन है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, है ना, एटर्नली लिबरेटेड लोग हैं, राइट. फिर कौन है आपके पास, मर्त्य. मर्त्य मतलब कि जो इस अर्थली प्लेनेट पे रहते हैं, उन्हें मर्त्य मर्त्य लोग, इसे मर्त्य लोग भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जन्म मृत्यु होता है, देन देयर इज अमर. तो देवता उनको बोलते हैं अमर. इसका मतलब है कि उनकी लाइफ बहुत बड़ी है हमारे कंपैरिजन में, अर्थ अर्थ पे रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में.
और उसका एक चिरंजीवी कैटेगरी भी है। चिरंजीवी में कुछ लोग हैं जैसे कि हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा है, राइट। तो उनको बहुत बड़ा जीवन मिला हुआ है, लाइक दे आर एबल टू लिव फॉर अ डे ऑफ ब्रह्मा जी। जनरली पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन के लिए, एक दिन मतलब कि हजार उसमें दिव्य युगास होते हैं, इतना लंबा उनको लाइफ मिल जाता है, तो चिरंजीवी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो शाश्वत वर्ड यूज क्या था एक्चुअली, ये इस टर्म्स में कि जो देवताओं की जो उम्र होता है वो बहुत लंबा उम्र होता है, दे आर लाइक अमर, है ना, अमर। अमर मतलब कि उनका लाइफ बहुत बड़ा है हमारे कंपैरिजन में, है ना। बाकी मैंने आपसे डिस्कस किया कि कैसे मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस नहीं आएंगे इस तरह के फैमिली में जन्म लेने का, राइट। अभी कोई बोल सकता है कि अरे जो ये योगी है ना, ये तो मुक्ति के लिए काम कर रहा था, अब इसका फॉल डाउन अगर हो गया तो फिर भगवान उसको स्वर्ग में क्यों भेज रहे हैं, है ना। तो देखिए कारण क्या है कि सी, ये जो योगी की बात की जा रही है वो वाला योगी है जिसने थोड़े समय भक्ति किया या थोड़े समय योगा किया, और फिर क्योंकि इतना प्योरिफिकेशन नहीं हुआ था उसका, he had only a short term of yoga practice and he had lot of material desires. So Krishna is giving him a means to fulfill those material desires, है ना। हाँ, because such kind of yogi has strong material desires, वो जो material desires हैं उसी के कारण वो डिवेट हो गया है, तो इससे भगवान उसको फुलफिल करने का मौका देते हैं एक्चुअली। देखिए जो भी material desires हैं, है ना, उस उनके साथ में कैसे डील किया जा सकता है, there are two ways to deal with our material desires, you know। पहला तो क्या बताया गया है शास्त्रों में, फर्स्ट है कि ठीक है, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू एंजॉय material sense gratification, then ठीक है, now you can indulge, now you can try to fulfill or you can work for that material desire, now along with performing the dharma। धर्म के साथ साथ धर्म को परफॉर्म करते करते आप क्या कीजिए ना, अपने डिजायर को फुलफिल करने का ट्राई कीजिए, राइट ना। तो फायदा क्या होगा कि धर्म आप करते रहेंगे तो क्या होगा, धर्म से एक आपको हायर टेस्ट मिलेगा, जिससे कि आपको रियलाइजेशन आएगा कि कैसे देखो जो मिडिल सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसमें ज्यादा मजा नहीं है, मजा धर्म में ही है एक्चुअली। तो इस तरीके से धीरे धीरे, ये थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, यू नो। ग्रेजुअली वन विल बी एबल टू कम टू द फुल रियलाइजेशन दैट हाउ देयर इज नथिंग इन सेंस एंजॉयमेंट। तो ये एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि इफ समबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड इट दैट हाउ मटेरियल एंजॉयमेंट इज नॉट एबल टू गिव मी हैप्पीनेस, वन इज एबल टू सी इट्स फ्यूटिलिटी, देन वन कैन गिव अप इंडल्जेंस, वन नीड नॉट टू इंडल्ज इनटू दैट एट ऑल। तो यहाँ पे जो योगी की बात की जा रही है वो वाला योगी है जिसको सेंस ग्रेटिफिकेशन की स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ज्यादा प्योरिफिकेशन नहीं हुआ उसका, ज्यादा योगा नहीं किया उसने लंबे समय के लिए ना। हमारे टर्म्स में कह सकते हो कि वो डिवाइस आया था 2-3 सेशन के बाद में छोड़ दिया, संकल्प तक आया था फिर छोड़ दिया, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो उसके लिए भगवान उसको फिर मौका देते हैं फुलफिल कर लेने का डिजायर को। ठीक है, जा भाई अच्छे से एंजॉय करके आओ जितना तुमको करना है। फिर लेकिन कृष्णा विल अगेन गिव अपॉर्चुनिटी फॉर अगेन टू कंटिन्यू हिज योगा प्रैक्टिसेस, है ना। तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट था। एक और चीज यहाँ पे देखिए, अगेन ही विल हैव टू कम बैक हियर ओनली। ऐसा नहीं बोलने कि वहां पे जाएंगे देवता लोक में और फिर वहीं से फिर वो फर्दर प्रोग्रेस कर सकता है, नहीं। क्योंकि ये जो अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, इसे कर्म भूमि बोला जाता है, right? जो भी हम लोग पाप और पुण्य करते हैं वो यहीं पर करते हैं प्राइमरली, और बाकी सब जगहों पे क्या करते हैं, उनको बस हम लोग भोगने जाते हैं, राइट। हमने यहाँ पे जो भी पुण्य किए उसको भोगने के लिए वी मे गो टू द अपर अपर प्लैनेट्स, और जो भी हम लोगों ने पाप किए उसके सफरिंग पाने के लिए हमें लोअर प्लैनेट्स में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो कर्म भूमि बोला गया है वो अर्थ को ही बोला गया है, राइट। यहीं पे प्रोमिनेंटली हम लोग पाप और पुण्य करते हैं, है ना। तो इसलिए यहीं पे वापस आना पड़ेगा उसको, और इस तरीके के फैमिली में उसको जन्म मिल पाएगा, है ना। तो ये पोपा जी वही बता रहे हैं ना, दो दो कैटेगरी के योगी, एक तो क्या है जो लंबे समय की प्रैक्टिस के पास जो गिरे उनके बारे में आगे बात की जाएगी, और एक है जो थोड़े से समय की प्रैक्टिस के बाद में जो लोग गिर गए, तो उनको फिर एंजॉयमेंट करने के लिए भगवान ना फैसिलिटी देते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट श्लोक का नाम। ठीक है, अभी नेक्स्ट बताएंगे कि जो योगी बहुत लंबे समय के बाद में जिनका फॉल डाउन हुआ है उनके साथ में क्या होता है, वो नेक्स्ट श्लोक का बताया जा रहा है। देखिए, व्हाट हैपेंस टू दोज हु डिविएट आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जिन्होंने कर दिया है ना। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतदधि दुर्लभत्रम दुर्लभतरम लोके जन्म यद लोके जन्म यद ईदृशम, राइट। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, राइट। धीमताम, धी मतलब होता है कि बुद्धि, right? धीमताम, मता मतलब कि मति मतलब कि बुद्धि बोलते हैं, धी मतलब कि अच्छी बुद्धि, राइट। कुले भवति, ऐसे कुल में उनका जन्म होता है। अथवा योगी, अथवा योगी मीन्स की, है ना, अथवा अथवा मतलब कि और ना, और जो और एडवांस्ड योगी है जिसने लंबे समय तक योगा प्रैक्टिस किया है, जिसका अच्छा लेवल का प्योरिफिकेशन हो चुका था, राइट, उसको क्या मिलेगा, उसको इस तरीके से स्वर्ग वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा, उसको डायरेक्टली क्या मिलेगा, उसको धीमताम कुल में उसको जन्म मिलेगा, राइट। जो बुद्धिमान योगीज हैं, राइट, जो ऑलरेडी योगीज हैं, है ना, उनके जन्म में उसको जन्म उस उनके कुल में उनको जन्म लेने का मौका मिलेगा ना। एतद धी दुर्लभ
दुर्लभतरम, राइट, है ना, लोके जन्म यद ईदृशम, राइट, इस प्रकार का जन्म है जो बड़ा दुर्लभ है ना, इस प्रकार का जन्म जो पाना है बड़ा दुर्लभ है। तो इस तरीके के योगी को क्या मिलेगा, वापस मौका मिलेगा, है ना, किसी योगी के परिवार में आने का, जहाँ पे बचपन से ही क्या करेगा, बचपन से ही उसका योगा वापस स्टार्ट हो जाएगा, बचपन से उसे योगा करने का मौका मिलेगा। और इफ द अनसक्सेसफुल if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of the transcendentalists who are surely great in the wisdom. Certainly such a birth is rare in this world, है ना। तो ये बताया गया है, इंटेलिजेंट योगिस की फैमिली में उसको जन्म मिलेगा, है ना, right? पढ़िए, परपट पढ़िए। birth, birth in a family of yogis of transcendentalists, those with great wisdom is praised therein because the child born in such a family receives a spiritual impetus from the very beginnings of his life. It is especially the case in the Acharya or Goswami families. Such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters. In India, there are many such Acharya families, but they have now degenerated due to insufficient education and training. By the grace of Lord, there are still families that foster transcendentalist generation after generation. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Fortunately, both our spiritual master Om Vishnupad, Sri Srimad Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Maharaj, and humble our humble self had the opportunity to take the birth in such families by the grace of the Lord, and both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. Later on, we met by the order of the transcendental system. तो जैसे हमारे केस में, जैसे जो डिवोटीज के फैमिली में जो बच्चे बच्चे जन्म लेते हैं, राइट, तो देखिए जब वो माँ के गर्भ में ही है, पहले तो माँ के गर्भ में जब गए तो वो गर्भाधान संस्कार से गए, पेरेंट्स ने बिफोर दे यूनाइटेड दे चैंट सर्टेन नंबर ऑफ राउंड्स, 50 राउंड्स का बताया गया हमारे लिए गृहस्थ के लिए, दैट बिफोर दे यूनाइट दे शुड चैंट 50 राउंड्स, एंड इन प्रॉपर मुहूर्त दे शुड यूनाइट, राइट। तो बचपन से और फिर जब माँ के गर्भ में भी जो बच्चा रहेगा तो माँ पूरा प्रसाद खाती है हमेशा, तो बच्चे को भी जो मिलेगा पूरा प्रसाद ही मिलेगा उसको शुरू से ही, और बचपन से ही वो सुबह, बचपन से वो हरे कृष्णा सुनेगा, बचपन से वो मंदिर जाएगा, चरणामृत पिएगा, राइट। तो दैट इज हाउ कि जो लोग एडवांस योगीज थे पुराने लाइफ में उनको ऐसा बर्थ मिलता है, ऐसा बताया गया है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे बहुत सारे जो आचार्यज हैं, how they also got such kind of birth, and Prabhupada is telling about himself and Bhaktivinoda Thakur, that how we also got such kind of birth, See, one important thing, Prabhupada यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि we were also fallen transcendentalists from the previous life, ऐसा Prabhupada ने नहीं बताया। Prabhupada is saying, see, we were also having this kind of opportunity, how? By the grace of the Lord, भगवान की कृपा से हमें भी इस तरीके के फैमिली में जन्म लिया। Prabhupada ने ये बोला है, बट ये नहीं बोला है कि हम भी पुराने जन्म में वैसे ट्रांसलेंटिस्ट थे जो परफेक्शन नहीं प्राप्त कर पाए, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा, नहीं। And so we know that how there are pure devotees who are directly sent by Krishna from the spiritual world. So in case of Prabhupada, Prabhupada never told much. Prabhupada never encouraged to, encouraged to, to tell about him. क्योंकि Prabhupada being an acharya, he wanted to set a system for our ISKCON, कि कोई अपने स्वरूप के बारे में बातचीत ना करे necessarily, क्योंकि अदरवाइज बड़ा, क्योंकि कोई बोलेगा कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं गोपा हूँ, अभी उसका प्रूफ कर पाना इतना आसान नहीं है ना हमारे लिए, ढूंढ पाना, राइट ना। तो बहुत एम्बिग्यूटी हो सकती है, इसलिए प्रभुपाद ने अपना स्वरूप रिवील नहीं किया, बट दैट्स द पॉइंट, प्रभुपाद नेवर एनकरेज फॉर इट, बट प्रभुपाद वाज अ वेरी ग्रेट सोल, and sometimes when Prabhupada was asked about his previous life, Prabhupada just told that maybe one astrologer told like this, but Prabhupada never very much elaborately told about these things, that's the point। एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद से पूछा कि महाराज, प्रभुपाद आपके पुरानी लाइफ के बारे में, आपके परफेक्शन के बारे में, कैसा परफेक्टेड हुए आप, नित्य सिद्ध हुए या फिर, है ना, क्या बोलते हैं, कृपा सिद्ध हैं या फिर साधना सिद्ध हैं। प्रभुपाद ने बोला कि देखो, स्पिरिचुअल मास्टर जो है, स्पिरिचुअल मास्टर पे पूरा फेथ होना चाहिए, एंड स्पिरिचुअल मास्टर इज कैपेबल ऑफ गिविंग अ डिसाइपल नॉलेज, doesn't matter that how he became perfect, whether he was a कृपा सिद्धा और नित्य सिद्धा, राइट, ना वो एटर्नली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है या फिर यहाँ पे आने के बाद साधना करने के कारण वो सिद्ध बन गया, परफेक्ट बन गया, मैटर नहीं करता। तो बट गिव एग्जांपल, जस्ट लाइक सपोज अगर आपके पिताजी करोड़पति हैं, तो आपके पिताजी अगर करोड़पति हैं तो
आप उनके अगर वंशज हैं तो आप भी करोड़पति बन जाएंगे, उनका जो प्रॉपर्टी वो आपके पास में आएगा, राइट ना। अब ये मैटर नहीं करता कि आपके पिताजी करोड़पति कैसे बने, उनका लॉटरी लगा था उससे बने या फिर वो भी खानदानी करोड़पति थे, मैटर नहीं करता। करोड़पति मीन्स करोड़पति, उसके पास में करोड़ रुपए हैं। वैसे जो स्पेशल मास्टर है वो लिबरेटेड है, कैसे वो लिबरेटेड बना, या तो वो नित्य सिद्धा है या फिर इस वर्ल्ड में प्रोफेशन पाया, वो मैटर नहीं करता है, पापा ने उसको ज्यादा इंकरेज नहीं किया है ना। एनीवेज पॉइंट यहाँ पे था, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सच योगी विल गेट अ चांस, जिसने थोड़ा एक अच्छा लेवल ऑफ योगा किया उसको फिर से मौका मिलेगा अपने योगा योगा को कंटिन्यू करने का, राइट फ्रॉम द चाइल्ड उसको योगी के परिवार में जन्म लेने का उसको मौका मिलेगा, है ना। तो या, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या होगा, ऐसे जगह पे जन्म लेने के बाद में क्या होगा, देखिए बता रहे हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया हम सिद्धो कुरु नंदन। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, राइट। On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve the complete success, O son of Kuru. Right? तो क्या होता है ऐसे ऐसे इस तरीके का जन्म पाने से क्या होता है कि one is able to revive the divine consciousness of his previous life. Right? पुराने जन्मों का जो उसका जो चेतना था उसको याद आ जाता है। जैसे भरत महाराज के केस में पापा यहाँ पे एग्जाम्पल भी देंगे, right? भरत महाराज को याद था कि मेरे पुराने जन्म में मैंने कितना तपस्या किया था, फिर मैं कैसे डियर से अटैच हो गया। एक तो पुराने जन्म का आपको वो याद रहेगा, पुराने जन्म की जो कॉन्शियसनेस था, पुराने जन्म का जो आपने एडवांसमेंट किया था वो आपके साथ में रहेगा। एडवांसमेंट मतलब क्या है, जो भी आपने वॉट एवर गुडनेस यू हैव कल्टिवेटेड, जितना आपने जो डिटैचमेंट डेवलप कर लिया है सेंस ग्रेटिफिकेशन से, और जितना आप में गुडनेस आ गया है, जितना आपके अंदर में स्पिरिचुअल नॉलेज आ गया है, वो आपके अंदर में कंटिन्यू करेगा। दैट्स द पॉइंट, राइट। और भक्ति के टर्म्स में आपका जितना अट्रैक्शन डेवलप हुआ है कृष्णा के लिए, जितना फेथ आ गया है, आपका जो फेथ है, your faith upon the supreme, your disinterest in the materialistic life, right, ये सब चीजें आपके साथ में आप कैरी ऑन करते हो जब आप ना दूसरी लाइफ में जाते हो। वही बता रहे हैं ना कि रिवाइव द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ पौर्वदेहिकम, पुराने जन्मों का, क्योंकि वी हैव आवर माइंड ना, माइंड में सटल बॉडी, तो सटल बॉडी गोज फ्रॉम दिस बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। तो अगर माइंड में जो भी अपनी प्योरिफिकेशन माइंड में हुआ है आपके, जो भी सतोगुण आया आपके माइंड में, राइट, वो आप अगली लाइफ में कैरी करोगे। तो आपके अंदर में एक डिसइंटरेस्ट रहेगा मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, एक आपके पास में अट्रैक्शन रहेगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, है ना। ये होगा बता रहे हैं। और फिर एंड ही अगेन ट्राइज टू मेक फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव द कंप्लीट सक्सेस, राइट। तो ऐसा पुराना पुराना रिमेम्बरेंस होने के साथ साथ में क्या होगा, फिर उसके कारण आप और यत्न करना चाहोगे और एफर्ट लगाना चाहोगे, है ना, सम सिद्धि पाने के लिए, प्रोफेशन प्राप्त कर लेने के लिए, राइट। तो ये चीज बहुत है कि मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट ये होना सफिशिएंट है, राइट, आपको फिर भी यत्न करना पड़ेगा इस लाइफ में, आपको और अच्छा एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि आप प्रोफेशन को प्राप्त कर पाओ, है ना। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है ना। तो कृष्णा विल गिव अपॉर्चुनिटीज बट साधका हैज टू टेक द इनिशिएटिव, राइट। तो पुराने लाइफ के कारण आपके कुछ अच्छे संस्कार बैठे हैं, आपके पास अच्छा एडवांटेज रहेगा, लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, है ना? ऐसा भी, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। बता रहे हैं कि क्या उसका कैरी ऑन करेगा, देखिए, है ना। ही विल हैव रिलेशनशिप विद द आत्मा एंड द परमात्मा यूजिंग हिज इंटेलिजेंस, राइट। बेसिकली भाई वन विल बी एबल टू हैव फेथ अपॉन द लॉर्ड, वन विल बी एबल टू हैव डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक लाइफ, राइट। ये सत्वगुण होगा उसके अंदर में, व्यक्ति के अंदर में। तो पद बता रहे हैं भरत महाराज का, पढ़िए परपट पढ़िए, 6 पॉइंट फॉर द परपट। King Bharat, who took his third birth in the family of a good Brahmana, is an example of good birth for the revival of previous transcendental consciousness. King Bharat was the emperor of the world, and since his time, this planet has been known among the demigods as Bharatvarsh. Bharatvarsh. Formerly, it was known as Ilavratvarsh. The emperor at an early age retired for spiritual perfection but failed to achieve success. In his next life, he took birth in the family of good Brahmana and was known as Jada Bharata because he always remained secluded and did not talk to anyone. And later on, he was discovered as the greatest transcendentalist by King Raghuvana. From his life, it is understood that transcendental endeavors or the practice of yoga never go in vain. By the grace of Lord, the transcendentalist gets repeated opportunity
for complete perfection in Krishna consciousness. तो रिपीटेडली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट, लेकिन आपको यत्न करना पड़ेगा, राइट। तो वापस आपको योगिस के परिवार में जन्म मिलेगा। आपको बचपन से योगा के बारे में और एडवांस करने का आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, है ना। और आपको वापस मौका मिलेगा कि आप वापस एफर्ट लगा सकते हो, है ना। तो ही अटेन्स द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ, राइट। पुराने जन्म में जो उसका मन का स्थिति था, तो वो रिटेन करेगा अपनी इस लाइफ में, ऐसा बताया जा रहा है ना, राइट। और देखिए क्या होगा फर्दर। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते, राइट। पूर्व अभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशः अवशोऽपि सः, राइट। तो पुराना जो अभ्यास किया था, पुरानी लाइफ में जो अभ्यास किया था, योगा का जो किया था, राइट, तो उसके कारण क्या होगा कि, है ना, ह्रियते ही अवश्य अपी, राइट राइट, खींचा खींचा चला जाएगा ना। खींचा चला जाएगा मतलब कि वो हेल्पलेसली वो व्यक्ति योगा के प्रति अट्रैक्टेड फील करेगा। हेल्पलेसली वो फील करेगा, मल्टी लाइफ के लिए डिसइंटरेस्ट फील करेगा। हेल्पलेसली मतलब ही विल हैव अ नेचुरल inclination to know about God, to know about spiritual life, to know एक ना हियते ही अवश्य होती, राइट। एक नेचुरल अट्रैक्शन रहेगा व्यक्ति के अंदर में ना। जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्मा right, he will be जिज्ञासु, है ना, he will be inquisitive, you see, by virtue of the divine consciousness of his previous life, right। पुराने जीवन का जो डिवाइन कॉन्शियस के कारण क्या होगा, he automatically becomes attracted to the yogic principles even without seeking them, ना, बिना बिना किसने उसको बताया नहीं, बट फिर भी उसके अंदर में एक नेचुरल अट्रैक्शन आएगा ना स्पेशल प्रिंसिपल्स को जानने के लिए। सच एन इनक्विसिटिव ट्रांसलेटर स्टैंड्स अवे ऑलवेज अबव द रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स, राइट। तो जो शास्त्रों में, जो वेदों में ना कर्म कांड जो दिया गया है, तब मटन एंजॉयमेंट का जो पाथ बताया गया है, धर्म अर्थ और काम, राइट ना, वो उससे डिटैच रहेगा। ही विल हैव इंटरेस्ट इनटू द मोक्षा ओनली। बचपन से ही वो जो पुराना अभ्यास के कारण क्या होगा, उसको डिसइंटरेस्ट रहेगा ना। ही विल हैव नो इंटरेस्ट इनटू धर्म अर्थ एंड काम। तो जो शब्द बताया गया ना पे, शब्द ब्रह्म, तो शब्द ब्रह्म मीन्स व्हाट, द पार्ट ऑफ द वेदास विच डील विद द कर्म कांडा। जो कर्म कांड है, धर्म अर्थ काम के लिए जो वर्क करने के लिए बताता है वेदास, तो उसके बाद उसका नेचुरल डिसइंटरेस्ट रहेगा। ही विल ओनली बी हैविंग इंटरेस्ट इन द मुक्ति। जैसे हम देख भी सकते हैं बहुत से प्रॉपर डिसाइपल्स को देखोगे ना, तो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दे वर हैविंग इंटरेस्ट इनटू स्पिरिचुअल लाइफ, दे वर सर्चिंग फॉर गॉड, एंड देन दे लैंडेड अप मीटिंग विद श्रील प्रभुपाद, लाइक हिज होलिनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज, हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज। फॉर मेनी ऑफ देयर लाइफ, बचपन से उनको एक अट्रैक्शन था स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। दे वर नॉट हैविंग इंटरेस्ट इनटू द मर्टल लाइफ, एंड देन दे वर एबल टू कम टू प्रभुपाद लाइक दैट। तो ये होगा मतलब ना, पुराने अभ्यास के कारण उसको ऐसा होगा बताया जा रहा है ना। या पढ़िए, परपट पढ़िए। एडवांस योगी सर। Advanced yogis are not very much attracted to the rituals of the scriptures, but they automatically become attracted to the yoga principles, which can elevate them to complete Krishna consciousness. The highest yoga perfection in the Srimad Bhagavatam, such this graded of Vedic rituals by the advanced transcendentalist is explained as follows. कहो बता स्वापा को go. ट्रांसलेशन पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो डायरेक्ट। Okay. O my Lord, persons who chant the holy names of your Lordship are far, far advanced in spiritual life. Even if born in families of dog eaters, such chanters have undoubtedly performed all kinds of austerities and sacrifices, bathed in the all sacred places, and finished all scripture studies. यस, तो मतलब पॉइंट है कि अगेन दैट वन विल हैव नेचुरल अट्रैक्शन फॉर द योगा प्रिंसिपल्स, है ना, एंड वन विल, एंड इफ समबडी विल गेट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस देन ही विल गेट द हाईएस्ट परफेक्शन, तो ये जो श्लोका बता रहा है कि कैसे कोई व्यक्ति अगर चैंटिंग कर रहा है, तो somebody chanting the holy name of the Lord, it means he has already performed all kinds of austerities, sacrifices, right। शास्त्रों में जो भी दान पुण्य करना, तपस्या करना जो बताया गया है, शास्त्र पढ़ना, उसका जो फल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि व्यक्ति भक्ति करना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है, इसका मतलब है कि ये माना जाएगा कि उसने सब कुछ पहले ऑलरेडी कर लिया है, राइट। अभी जरूरी नहीं कि उसने सब कुछ पहले किया होगा, उसने दान पुण्य किया होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि वो सब करने का जो अल्टीमेट गोल था वो उसे मिल चुका है। इट्स जस्ट लाइक like somebody is doing PhD. It means what? It is 100% sure कि उसने ऑलरेडी 10th क्लास 12th क्लास पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, तभी वो PhD, राइट ना। अभी उसने असली में किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन PhD मिल गया मतलब कि अभी वो सब करने की उसको जरूरत नहीं है, वो उनके ऊपर में आ गया है, वो ऐसा है।
जैसे कोई भी अगर चैंट कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो अंडरस्टैंडेबल है कि उसने बाकी सब चीजों को ओवरकम कर लिया, राइट? पढ़िए द फेमस एग्जांपल ऑफ दिस। The famous example of this was presented by Lord Chaitanya, who accepted Thakur Haridas as one of his most important disciples. Although Thakur Haridas happened to take his birth in a Muslim family, he was elevated to the post of Namacharya by Lord Chaitanya due to his rigidly attended principle of chanting 300,000 holy names. The Lord really Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And because he chanted the holy name of Lord constantly, it is understood that in his previous life he must have passed through all the ritualistic methods of the Vedas known as Sabd Brahma. Unless, therefore, one is purified, one cannot take to the principle of Krishna consciousness or become engaged in chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna. या तो एग्जांपल दे रहे हैं हरिदास ठाकुर जी का भी, कैसे? बिकॉज ही वाज चैंटिंग हरे कृष्णा, इट इज अंडरस्टूड दैट ही हैज क्रॉस्ड ऑल अदर स्टेजेस। तो ये एसेंशियली क्या है कि सच ए योगी ना, सच ए योगी विल हैव नो इंटरेस्ट फॉर द मटल वेलफेयर, ही विल बी सिंपली इंटरेस्टेड इन द स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसा बताया गया यहाँ पे, right? और देखिए और फर्दर क्या होगा, ऐसा योगी और फर्दर क्या करेगा? प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। प्रयत्नात् यत यतात्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। इस तरीके से जब वो प्रयत्नात् यत मानस, राइट, इस तरीके से जब वो एंडेवर करेगा ना, और क्या होगा? संशुद्ध किल्बिषः, सारे प्रकार के जो सिंस हैं, सारे प्रकार के जो इम्प्योरिटीज है, जब उससे वो प्योरीफाइड हो जाएगा, अनेक जन्म संसिद्ध, राइट, तो फिर अनेकों जन्मों के बाद में वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। एंड ततो याति पराम गति, और उसके बाद में परम गति को प्राप्त कर पाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, means yogi will, so yogi will yogi will have to endeavor more, उसको और प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। जब वो इससे और प्रयत्न करेगा, then he will become vast of all the contaminations, and then ultimately he will be able to achieve the perfection after many births of practice, and then he will be able to attain the supreme goal, ऐसा बताया गया, right? पॉइंट है कि इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, है ना? तो सो कृष्णा इज गिविंग, थोड़ा ये हम्बलिंग है कि, है ना, सोबरिंग है या फिर हम्बलिंग है कि देखो, इट विल टेक टाइम फॉर द योगी, ही विल हैव टू डू लॉट ऑफ एंडेवर्स ना, for for lot of time, for lot of birth, then he will be able to become purified, and then he will be able to get ना, go back to the spiritual world, right ना? तो of course but confidence giving भी मान सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, एटलीस्ट दिस इज श्योर कि अगर योगी ट्राई करेगा, then surely is going to go back to the spiritual world. Like the past time coming, Chaitanya Mahaprabhu related about Mukunda. Mukunda was told by Chaitanya Mahaprabhu that he will be able to take my darshan after 10 million lifetimes. When Mukunda heard about this, then he became ecstatic that, "Arey, I have got assurance that after 10 million lifetimes, I am going to get darshan of Chaitanya Mahaprabhu, mercy of Chaitanya Mahaprabhu." Then Chaitanya Mahaprabhu, when he saw that, then he called him and then he immediately gave his mercy. The same way, a yogi also has to be hopeful that how, if he will make an effort, then then over a period of time he will be able to get the supreme goal, ना, ये बताया गया है। पढ़िए जरा प्रपात परपट। A person born in particularly righteous righteous righteous, aristocratic, or sacred family becomes conscious of his favorable condition for executing yoga practice with determination. Therefore, the begins his unfinished task, and thus he completely cleans himself of all material contamination. When he is finally free from all contamination, he attains the supreme perfection, Krishna consciousness. Krishna consciousness is the perfect stage of being freed of all contamination. This is confirmed in Bhagavad Gita 7.28. येषां तो अंतगता पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोहमुक्ता. After many births of executing pious activities, when one is completely freed from all contamination and from illusory devotees, one becomes engaged in transcendental loving service of the Lord. तो देखो वही परपट प्रभात बता रहे हैं कि कैसे इस तरीके से जो भी व्यक्ति है, या तो वो राइचियस फैमिली में जन्म लेगा, या फिर एरिस्टोक्रेटिक में, राइचियस मतलब कि पायस फैमिली, है ना, या फिर एरिस्टोक्रेटिक मतलब धनी परिवार में, या फिर सेक्रेड फैमिली की योगीज की फैमिली में,
na, becomes conscious of his favorable condition for executing the yoga practice. With determination, therefore, he begins his unfinished task and thus he completely cleanses himself of all the material, right? तो इस तरीके से जो भी ये योगी है, राइट, दोनों प्रकार के योगीज हो गए, राइट। राइट, पहला योगी जो जिसका कम प्योरिफिकेशन हो रखा था, जो शॉर्ट प्रैक्टिस के बाद में जिसका फॉल डाउन हो गया, और दूसरा जो योगी है जो लंबे प्रैक्टिस के बाद में जिसका फॉल डाउन हुआ, राइट। दोनों योगी के लिए बताया जा रहा है कि ये जो श्लोका था कि आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स, राइट। तो दोनों योगीज के लिए, बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन हिज इंटेंसिटी, फर्दर सिंसियरिटी एंड इंटेंसिटी, दोनों इवेंचुअली ना they will become purified and they can get a supreme goal. तो यहाँ पे देखिए बात क्या है कि हाउ कृष्ण इज फेवरिंग दिस योगीज। दो तरीके से कृष्ण उनको फेवर कर रहे हैं। पहला तो क्या है, जो भी उन्होंने एडवांसमेंट किया है प्रीवियस लाइफ में, भगवान वो उनके 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 लिए रिटेन रहेगा। जो भी उन्होंने अपने मन को शुद्ध किया है, जो भी सेंस ग्रेटिफिकेटेड डिजायर्स को छोड़ा है, डिटैचमेंट डेवलप किया है, राइट, वो सारा प्रैक्टिस उनके साथ में रहेगा। पहला तो फेवरेबल भगवान ये देंगे उनको, और दूसरा क्या है कि उनके पास में एक फेवरेबल एनवायरनमेंट भी रहेगा ना कंटिन्यू कर लेने का। बट एट द एंड ऑफ द डे दे ओनली हैव टू टेक अ कॉल, right? The free will be there. If a yogi will use his free will, then he can very quickly advance because he will have access to his previous advancement and he is having a favorable environment. But the thing is that yogi only has to take the initiative. God, Krishna will help him by arranging a favorable situation and by also giving him his previous spiritual advancement, ना the knowledge of the previous advancement, है ना। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं, भगवान आंसर किया कि कैसे वो फेवर करते हैं। तो this way Krishna is assured that how anyone who has once started the yoga, he will have no durgati. He will not have any durgati, and he will be able to have very good future ahead. ऐसा बताया, right? Now, last two shlokas, Krishna is now summarizing. Krishna is now concluding. Krishna is giving a conclusion that who is the best of the yogis. So next 46 shloka. तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। राइट, तपस्वी मतलब कि जो एसेटिक है, एसेटिक मतलब कि तपस्या करने वाले लोग हैं, राइट। तो तपस्वियों से अधिक कौन है? योगी। योगी इज ग्रेटर देन द तपस्वीज, ओके। एंड ज्ञानी भी हो अपनी मतो अधिक, राइट। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान को फॉलो करते हैं, ज्ञान पाथ को फॉलो करते हैं, ज्ञानी जो है, उससे भी ग्रेटर कौन है? वो योगी है। कर्मी भ्यस चाधिको योगी, और कर्मी से तो कहना ही क्या, जो कर्मी योगा को फॉलो करने वाले लोग हैं या फिर कर्मी जो लोग हैं उनसे भी योगी इज द ग्रेटर। तस्माद योगी भव अर्जुन, राइट। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो, ऐसा वो बोल रहे हैं। बट हाउ अ योगी इज ग्रेटर देन द एसेटिक्स। एसेटिक मीन्स की तपस्वी लोग जो तपस्या करते हैं, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, ठंडे में रहना, वो सब जो तपस्या अलग प्रकार की तपस्या करते हैं, राइट। तो योगी इज ग्रेटर देन द तपस्वीज, योगी इज ग्रेटर देन द ज्ञानीज, एंड योगी इज ग्रेटर देन द कर्मीज, एंड दैट्स व्हाई अर्जुन यू बिकम सच काइंड ऑफ ए योगी, ऐसा वो बता रहे हैं। हाँ, see? A yogi is greater than the ascetic, greater than the empiricist. Empiricist means कि ज्ञानी, and greater than the fruity workers. Therefore, O Arjuna, in all the circumstances, be a yogi. So Krishna is telling that you become a yogi. Okay. See, what is the meaning of yoga? Yoga means to connect. So yoga is a process of linking. Yoga is a process by which we can link our consciousness with the supreme person, right now. यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं कि be a yogi means what? Be a person whose consciousness is connected with Krishna, right now. Now whose consciousness is connected with the supreme. Okay. So what kind of yogi? That is the next shloka, right? What kind of yogi you should become, Arjuna? Here Krishna told that you become a yogi because yogi is greater than all these people. But then what kind of yogi? That is being explained in the next shloka. See, one important thing. See, asceticism without self knowledge is imperfect, right? तो देखिए सिर्फ अपने आप में तपस्या, कोई तपस्या कर रहा है बट उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। जस्ट लाइक जैसे कई मोटे लोग हैं, तो कई मोटे लोग हैं वो अपना मोटापा कम करने के लिए वो लोग भी फास्टिंग वस्टिंग करते हैं, लेकिन उनका फास्टिंग इज नॉट इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ योगा। योगा में समथिंग which helps our conscious for fasting. The purpose of our fasting is to increase our remembrance of Krishna. We try to chant more number of rounds, or we try to celebrate some festivals. We try to do some service for Krishna more and more. So, but if somebody is doing some tapasya, but he's not Krishna conscious, he's not using his consciousness for absorbing into the supreme, then such kind of tapasya has no use. This is what important.
Same way if somebody is doing jnana, somebody is trying to speculate on the spiritual knowledge, but he's not focused upon the Supreme Lord, then that is also imperfect. Footy work is also imperfect, you know. That's why the highest form is the bhakti yoga. So Lord ने यहाँ पे establish किया कि कैसे become a yogi, because yogi is higher than all these people, you know. But then what kind of yogi, which yogi is the best of the yogis, वो यहाँ पे भगवान लास्ट श्लोक में बता रहे हैं, sum up कर रहे हैं, that which yogi is most dear to me, भगवान बता रहे हैं. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः. Right? देखिए, योगी एंड युक्त, ये दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं सेम पर्पस के लिए. Right? योगी किसको बोलते हैं? जो योगा करता है, मतलब जो one who is trying to one who is trying to connect his consciousness with the supreme, that is a yogi. एंड उसी को युक्त भी बोलते हैं. युक्त मतलब कि वेल सिचुएटेड. युक्त मीन्स वेल सिचुएटेड, मीन्स अ पर्सन हु इज whose consciousness is connected with the supreme. ओके, तो आप बताते हैं कि समय युक्त तमो मतः उत्तम मतः. राइट, आई कंसिडर दैट काइंड ऑफ युक्त. युक्त मीन्स वेल सिचुएटेड योगी, है ना. उत्तम मत, राइट. सो आई कंसिडर हूम एज द टॉप मोस्ट योगी. वो बता रहे हैं कौन किसको मैं अपना सबसे बड़ा योगी मानता हूँ आउट ऑफ ऑल दिस पीपल. से योगी नाम अपि सर्वेशाम, सारे योगियों में, राइट, कौन किसको मैं उत्तम मानता हूँ, किसको मैं युक्ततम मानता हूँ? मद गतेन अंतरात्मना, ना, जो मद गति, राइट, ना, जिसने अपना गति, अपना गोल, अपना जो ध्येय है, अपना जो गोल है, जिसने जिसने मुझे अपना गोल बनाया. मुझे मीन्स कृष्णा इज टेलिंग, द वन हु मेक्स मी एज हिज गोल. जो व्यक्ति मुझे अपना गोल बना देता है. एंड अंतरात्मना, राइट, और वो अपने मन में, आत्मना मतलब कि मन में, अंतर मीन्स अंदर. एंड वन इज ऑलवेज ट्राइंग टू थिंक अबाउट मी विद इन हिज माइंड, जो हमेशा अपने मन के अंदर में मेरा बारे में सोचता है और जो मुझे अपना गोल बना देता है. और श्रद्धा से, श्रद्धावान भजते यो माम, मेरा भजन करता है श्रद्धा के साथ में, फेथ के साथ में, राइट. समय युक्त तमो मत, राइट, उसको मैं सबसे बड़ा टॉप मोस्ट योगी मानता हूँ, ऐसा भगवान बता रहे हैं. राइट, तो समअप करने के लिए लॉर्ड इज टेलिंग दैट, who is the best of all the yogis or the yuktas? One, first thing is one who has made me as his goal. Right? यहाँ पे पोपा ने ट्रांसलेट किया है, मद गतेन मीन्स अबाइडिंग इन मी, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, है ना. अंत आत्मना मीन्स विद इन हिमसेल्फ. ओके, तो वही मद गतेन मतलब कि अबाइडिंग इन में मतलब क्या है कि जो हमेशा मुझ में रहता है. इसका मतलब है कि जो हमेशा मुझे अपना गोल बना के रखता है. वन हु ऑलवेज कीप्स मी एज हिज गोल, और जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है, राइट, अंतरात्मना. राइट, तो ये दूसरा लाइन बता रहा है कि वन हु हैज मेड हिम one who has made me as his goal, and one who is always thinking about me, and one who engages in my bhajan, जो मेरा भजन करता है ना, मेरा स्पेशल, मेरा डिवोशनल सर्विस करता है ना, उसको मैं सबसे उत्तम योगी मानता हूँ. भगवान यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं. एंड ऑफ ऑल द योगीज द वन विथ ग्रेट फेथ who always abides in me, right, who always abides in me मतलब क्या कि who 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 accept me as his goal, that thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in the yoga and is highest of all. That is my opinion. Right? भगवान बता रहे हैं कि वही मुझे, राइट, विश्वनाथ ठाकुर बता रहे हैं, देखिए, but I consider he who worships me with faith, with mind attached to me, to be greater than all types of the yogis. Right? देखिए, इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे योगी इज ग्रेटर देन कर्मीज, योगी इज ग्रेटर देन द कर्मीज एंड द तपस्वीज एंड द ज्ञानीज. और यहाँ पे बता रहे हैं कि इन योगियों में भी सबसे बड़ा योगी कौन है? वो जो जो डायरेक्टली मेरे बारे में जो सोचता है और मेरी भक्ति में एंगेज करता है अपने आप को फेथ के साथ में. भगवान यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं. राइट, तो पपट में पापा जी पहले भजन का मीनिंग बता रहे हैं कि कैसे जो वर्ड भजन है, दैट अप्लाइज ओनली टू भगवान, दैट अप्लाइज ओनली टू कृष्णा. यू कैन नॉट हैव भजन ऑफ देवी देवता एंड ऑल. राइट, भजन, दिस वर्ड इज ओनली यूज्ड फॉर कृष्णा, फॉर द भगवान. पहले पापा जी उसके बारे में बता रहे हैं. एंड पापा बता रहे हैं कि कैसे हाउ भक्ति योगा इज द अल्टीमेट गोल. जैसे यहाँ पे भी बता रहे हैं, राइट ना, कि हु इज द टॉप मोस्ट योगी, जो मेरा भजन करता है, जो फेथफुली मेरा भजन करता है, राइट ना. दैट्स व्हाट सो द भक्ति योगा इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी डू भजन ऑफ कृष्णा डायरेक्टली, राइट ना. दैट्स द भक्ति योगा इज द हाईएस्ट पाथ, है ना. दैट्स व्हाट so please read this blue part, then I will explain it a little bit. The culmination of all kinds of yoga practice lies in yoga. All other yogas are but means to the points of bhakti in bhakti yoga. Yoga actually means bhakti yoga. All other yoga are progressions towards the destination of bhakti yoga. From the beginning of karma yoga to the end of bhakti yoga is a
long long way. way, long way to self-realization. Karma yoga without fruity result is the beginning of this path. When karma yoga increase in knowledge and renunciation, the stage is called jnana yoga. When jnana yoga encourages in meditation on the super soul by different physical processes and the mind is on him, it is called Ashtanga Yoga. And when one surpasses the Ashtanga Yoga and comes to the point of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, it is called Bhakti Yoga. The culmination, factually, Bhakti Yoga is the ultimate goal. But to the analyze Bhakti Yoga minutely, one has to understand these other yogas. The yogi who is progressive is therefore on the true path of eternal good fortune. One who progress is the one who sticks to the particular point and does not make further progress is called by that particular name karma yogi, jnani yogi, or dhyana yogi, raja yogi, hatha yogi, etc. If one is fortunate enough to come to the point of bhakti yoga, it is to all other yogas. Therefore, to become Krishna conscious is the highest stage of yoga. Just as when we speak of Himalayan, we refers to the world's highest mountain, of which the which the highest peak Mount Everest is considered to be the culmination. हम्म तो देख यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. अगेन पर्पज एस्टेब्लिशिंग दैट कैसे कि जो कल्मिनेशन मतलब कि जो गोल है, एंड है सारे योगा का, जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो क्या है, वो भक्ति योगा ही है ना. और बाकी सारे जो योगाज हैं वो भी क्या, दे आर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ द भक्ति योगा, राइट. वो भी डिफरेंट डिफरेंट सीढ़ियां हैं एक व्यक्ति को भक्ति योगा के पास में लेके आ जाने के लिए, राइट. तो जैसे पहला क्या हो गया, फर्स्ट क्या है, लाइक व्हाट इज कर्म योगा. कर्म योगा विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स इज द बिगिनिंग ऑफ दिस पाथ, नो, लाइक जो निष्काम कर्म योगा जो होता है जैसे बोलते हैं, राइट. निष्काम कर्म योगा बिगिनिंग है. फिर क्या है, जब कर्म योगा बढ़ता है तो फिर वो ज्ञान योगा बन जाता है, राइट. ज्ञान योगा मतलब कि व्यक्ति एक्टिविटीज भी नहीं कर रहा है ना. और फिर ज्ञान योगा जब बढ़ेगा तो देन ही विल कम टू द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन अपॉन द सुपर सोल, राइट. दैट इज अष्टांग योगा या फिर हठ योगा जिसको बोलते हैं. और जब व्यक्ति इसके पार आ जाएगा तो फिर वो भक्ति योगा को भी प्राप्त कर सकता है. तो देखिए भक्ति योगा इज द अल्टीमेट गोल, बट टू एनालाइज द भक्ति योगा माइंड वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस अदर योगा, राइट. तो बाकी योगा को समझना क्यों जरूरी है, ताकि हम भक्ति योगा को भी अच्छे से समझ पाए, है ना, राइट. तो एक्चुअल में क्या है, कोई व्यक्ति सही में अगर योगी है तो वो क्या करना चाहिए, उसको इन सब चीजों को क्रॉस करके भक्ति योगा में आना चाहिए. कोई व्यक्ति अगर उसी जगह पे स्टकअप हो गया है, देन वी विल कॉल हिम एज अ कर्म योगी और ज्ञान योगी. अदरवाइज योगी मीन्स वन हु इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द भक्ति योगा, है ना. तो therefore to become Krishna conscious is the highest stage of yoga. Just as when we speak of the Himalayan, we refer to the world's highest mountains, of which the highest peak, Mount Everest, is considered to be the highest, अपना. तो just मैं एक चीज शो करता हूँ आपको. Let me just show you one thing. कि किस तरीके से इसको समझ सकते हैं. जस्ट एक, मैं एक डायग्राम बनाया था तो, लेकिन कैसे खोला जाएगा, पहले इसको सेव कर लिया जाए ना. जस्ट एक मिनट, हाँ. एक डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको समझ सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे बताया गया है अलग अलग योगास के बारे में कि हाउ भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट. लेट मी शो यू. हाउ टू रोटेट दिस या दिख रहा है ना अभी आपको स्क्रीन पे. Yes, Fauzi. Yes, तो please. देखिए जैसे लेटर से सपोज देयर इज अ बिल्डिंग, ओके. ये ना 4 मंजिले की बिल्डिंग है मान लीजिए ना. ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. दिख रहा है आपको राइट साइड में, ये एक बिल्डिंग है मान लीजिए. 4 मंजिल की बिल्डिंग है, ठीक है. इस 4 मंजिल की बिल्डिंग में देखिए पहला फ्लोर जो है सपोज मान लीजिए वो हेवन का है. दूसरा फ्लोर है वो ब्रह्म ज्योति का है मान लीजिए. तीसरा फ्लोर है वो है परमात्मा रियलाइजेशन का है. और जो चौथा है सबसे हाईएस्ट है वो है भगवान रियलाइजेशन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है. तो ये है ना, ये एक बड़ी सी 4 मंजिल की बिल्डिंग है, ठीक है ना.
अभी देखिए सबसे पहला जो है वो है कर्म कांड। कर्म कांड को कोई अगर व्यक्ति फॉलो करेगा तो कहाँ तक पहुंच पाएगा वो हेवंस तक पहुंच सकता है, राइट। देखिए अल्टीमेट पर्पस क्या है कि इस बिल्डिंग में टॉप मोस्ट जो भगवान रियलाइजेशन में पहुंचना है, जो कि हम लोग भक्ति योगा से प्राप्त कर सकते हैं, राइट। भक्ति योगा में भक्ति योगा क्या है, एक एलिवेटर के समान है। एक तो तरीका है कि हम लोग सीढ़ी बाय सीढ़ी जाएं, एक है कि हमने यहाँ पे लिफ्ट लगा दिया, लिफ्ट से सीधा आप भक्ति योगा में जा सकते हो, लिफ्ट से आप सीधा भगवान रियलाइजेशन में पहुंच सकते हो। तो अभी देखिए जो कर्म कांड है ना, वो सारे प्रोसेस आपको क्या करते हैं, दे विल हेल्प यू ओनली टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओनली ओनली बी एबल टू रीच टू द हेवन। ठीक है। कर्म कांड इज लाइक एक फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है। देन यू हैव अ ज्ञान कांड, ज्ञानी वाला जो पाथ है, राइट। तो मोस्टली ज्ञानीज दे एस्पायर फॉर ब्रह्म ज्योति, तो उसको फॉलो करके आप मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति का जो रियलाइजेशन है उसको प्राप्त कर सकते हो कि हाउ द सुप्रीम इज अ ब्रह्म ज्योति। ठीक है। ये 2 मंजिल की बिल्डिंग हो गया मान लो, राइट। और फिर इसके बाद में अभी जो हम डिस्कस करते हैं ध्यान योग या फिर अष्टांग योग, इसको कोई व्यक्ति अगर फॉलो करेगा तो मैक्सिमम वो परमात्मा रियलाइजेशन तक पहुंच सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना। तो लेकिन अल्टीमेटली व्यक्ति को अगर भगवान रियलाइजेशन पर आना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको भक्ति को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारे भी पाथ हैं ग्रेजुअली, जैसे सपोज कोई व्यक्ति 1 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर में पहुंच गया, एक स्वर्ग तक पहुंच गया, और उसके बाद में व्यक्ति थोड़ा सोचेगा कि अभी और क्या करना चाहिए, आगे कैसे निकलना चाहिए ना, धर्म अर्थ काम। कि काम मैंने ना, आई एम ट्राइंग टू हैव एंजॉयमेंट, मैं भी स्वर्ग में भी आ गया एंजॉयमेंट कर लेने के लिए, राइट। बट क्या ये बार बार वापस मुझे वापस लेकिन वापस अर्थ पे जाना पड़ेगा, वापस पुण्य करूंगा तो वापस स्वर्ग में मौका मिलेगा, वापस आना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से व्यक्ति जब सोचता है कि अभी मुझे क्या इसके परे भी कुछ चीजें हैं, देन ही मे वांट टू गो फॉर द ज्ञान योगा, ना ज्ञान कांड या फिर ज्ञान योगा। तो then he may come to the path of the jnana, and then he may get what maximum he can get the realization of the brahma jyoti। ना उस पाथ को फॉलो करके, ज्ञान योग का पाथ फॉलो करके, ही कैन मैक्सिमम कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रह्मन और ब्रह्म ज्योति, बट एक बार ब्रह्म ज्योति की अंडरस्टैंडिंग तक आ गया, ठीक है, इसके आगे भी कुछ हाई चीजें हैं क्या, देन ही मे बी एबल टू लैंड अप विद अष्टांग योगा, राइट। तो कहने का मतलब कि देखिए अपने आप में सारे प्रोसेस इंडिपेंडेंट है। अष्टांग योगा अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ज्ञान कांड भी अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रोसेस है ना। और अगर किसी को टॉप मोस्ट भगवान रियलाइजेशन पर आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको भक्ति में ही आना पड़ेगा। और वो कैसे पॉसिबल होता है, किसी ना किसी भक्त के एसोसिएशन में पॉसिबल हो पाता है। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे भक्ति होगा, इसलिए हाईएस्ट है बिकॉज वो आपको जो हाईएस्ट रियलाइजेशन है सुप्रीम का, दैट हाउ द सुप्रीम इज भगवान, है ना। एंड परमात्मा एंड ब्रह्म ज्योति आर द फीचर्स ऑफ दैट भगवान। तो वो केवल आप भक्ति से आ सकते हो, है ना। तो बाकी रास्ते क्या है, आपको उस रास्ते के पास पहुंचने में मदद करते हैं ना, वो सब एलिवेशन उस लेवल पर लेकर आ जाते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली भक्ति योगा को पकड़ना पड़ेगा भगवान रियलाइजेशन में पहुंचने के लिए। ठीक है। भगवान यहाँ पे इसको बता रहे हैं कैसे, वो योगी जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मेरी भक्ति करता है, वो सबसे टॉप मोस्ट योगी है, भगवान ये बता रहे हैं पहली बात, राइट। दूसरा देखिए भक्ति योगा सबसे हाईएस्ट बात क्यों है, क्योंकि देखिए भक्ति योगा में सारे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो हैं, राइट। जस्ट टू शो यू मैं इसको लिख तो नहीं पाया बट अभी एक बार लिख देते हैं, चलिए। आई थिंक हमको 10 मिनट और लगेगा फाइनल करने में डिस्कशन में। देखिए कैसे जो भक्ति योगा क्यों हाईएस्ट बात है, क्योंकि भक्ति योगा में सारे बाकी सारे जो योगा से सारे सबके एलिमेंट्स हैं, right? देखिए सबसे पहले टू बिगिन में वह है निष्काम कर्म योगा, राइट। कर्म योगा या निष्काम कर्म योगा, तो उसमें मेनली व्यक्ति क्या फोकस करता है, व्हाट इज द मेन फोकस इन दैट, डिटैच्ड वर्क, डिटैचमेंट के साथ में वर्क करना, ठीक है। उसके ऊपर में क्या आता है, वो आता है ज्ञान योगा, राइट। उसका जो मेन कंपोनेंट है ज्ञान योगा का वो क्या है, वो है बेसिकली नॉलेज, नॉलेज एंड रिनंसिएशन, ज्ञान और वैराग्य। पर्सन स्टडीज द शास्त्रास एंड डेवलप्स वैराग्य फ्रॉम द मटेरियल थिंग्स, दैट्स द ज्ञान योगा, राइट। इसके ऊपर में क्या हो गया, वो है ध्यान योगा, राइट। ध्यान योगा, राइट। कि ध्यान योगा में मेन चीज क्या है, इट इज बेसिकली अबाउट द मेडिटेशन अपॉन द परमात्मा, राइट। मेडिटेशन अपॉन द परमात्मा, और वो कैसे होता है, बाय द कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस, राइट। बाय द कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड सेंसेस व्यक्ति क्या करता है, ध्यान लगाना है, परमात्मा पे ध्यान लगाता है, राइट ना। अभी देखिए भक्ति में तो आप देखेंगे एक चीज ना, देखिए जैसे निष्काम कर्म योगा का मेन कंपोनेंट क्या है, डिटैच वर्क करना। अभी जो ज्ञान योगा है उसमें ऑलरेडी निष्काम कर्म का भी कंपोनेंट रहेगा, राइट। तो ज्ञान योगी है वो भी डिटैच रहेगा, वो भी जो भी वर्क करेगा डिटैच रहेगा उससे, और उसके पास में नॉलेज भी रहेगी, राइट। ध्यान योगा में क्या रहेगा, उसके पास में नॉलेज भी है, रिनंसिएशन भी है ना, डिटैचमेंट भी है, और उसके साथ साथ में वो मेडिटेशन भी कर रहा है परमात्मा के ऊपर में। ओके। और अभी देखिए भक्ति योगा में आप देखेंगे तो भक्ति योगा में सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। भक्ति योगा में आप देखिए डिटैच वर्क भी है, नॉलेज भी है, रिनंसिएशन भी है, और हम ध्यान भी लगाते हैं भगवान पे ना, माइंड और सेंसेस का कंट्रोल भी है।
तो अल्टीमेट क्या है, भक्ति योगा इज हैविंग डिवोशन, द मेन थिंग इज डिवोशन टू लॉर्ड। डिवोशन किस चीज का है, मतलब कि हार्ट का आइटम है ये, एक हमारा हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। तो देखिए, क्योंकि जहाँ पे हार्ट इन्वॉल्व होगा, अगर हृदय इन्वॉल्व होगा, तो अपने आप फिर मन, इंद्रियां, बुद्धि सब अपने आप इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो भक्ति योगा इज द हाईएस्ट बिकॉज इट इज ऑल द कॉम्पोनेंट्स। भक्ति योगा में आप देखिए, हम लोग वर्क भी करते हैं, वी वर्क विद डिटैचमेंट फॉर कृष्णा, we are renounced from the fruits, and we also meditate, we do chanting Hare Krishna mantra, we try to focus our mind upon Krishna, we try to take darshan of the deities, we try to offer bhoga to the deities, we try to have control of the senses. So bhakti yoga in that way, it is having all the components of the other yogas. That's why bhakti yoga is the highest of all the yogas, तो भगवान भी यहाँ पे इस चीज को establish करें that how topmost is the bhakti yoga, and the yogi, the bhakti yogi is the highest of all the yogis. That's what Krishna is also telling that. Okay? So this was the last section of this chapter about where Krishna has established that how bhakti yoga is the highest, है ना। अभी एक दो important चीजें और डिस्कस करने के लिए before we end is, है ना, सी एक चीज और जो डिस्कस करना था कि कैसे जो योगी जो होता है, अष्टांग योगी, देखिए हाउ डज ही गेन रियलाइजेशन, उसका जो रियलाइजेशन का लेवल कैसे होता है, देखिए। तो देखिए, अष्टांग योगा अपने आप में जो प्रोसेस है ना, दैट विल हेल्प अ पर्सन मैक्सिमम। अष्टांग योगा का हेल्प लेके व्यक्ति क्या मैक्सिमम उसको क्या मिल मिल सकता है ना। देखिए, कोई व्यक्ति अगर अष्टांग योगा को फॉलो करता है, इस प्रोसेस को फॉलो करता है, ही गोज टू द फॉरेस्ट एंड ही ट्राई टू विथड्रॉ हिज माइंड फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड ट्राइज टू लिव इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका माइंड कंट्रोल में आएगा, सेंसेस कंट्रोल में आएंगे, और धीरे धीरे क्या 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 देखिए। तो अभी इनिशियली मान लीजिए, अगर उसको अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सपोज उसका इम्पर्सनलिस्टिक आइडियाज है, he has impersonalistic ideas ki देखिए, I think the highest is the impersonal Brahma Jyoti, so when he will do meditation, then when he will be doing meditation, so suppose he has those ideas that ultimate thing is the Brahma Jyoti. So then when he's doing meditation, uh, he may be able to see Paramatma also within his heart, he may be able to see Vishnu in his heart, होगा, क्योंकि वो प्रोसेस है ना, प्रोसेस को फॉलो करेगा कोई भी, तो उसको परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा अपने हार्ट में। तो लेकिन अगर मान लीजिए उस समय उसका मन में, है ना, इम्पर्सनलिस्टिक कॉन्सेप्शन अगर हाईएस्ट है कि भाई हाँ अल्टीमेट लेकिन ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति से सब चीजें आ रही है, हम सब जो आ रही हैं सब ब्रह्म ज्योति से आ रहे हैं, और ये जो विष्णु भी है, विष्णु भी क्या है, ब्रह्म ज्योति के ही हिस्से हैं, और मैं भी वही विष्णु हूँ, मैं भी वही ब्रह्म ज्योति हूँ। अगर उसका ये कॉन्सेप्शन है, तो जब उसने ध्यान योगा किया, जब उसको परमात्मा का दर्शन हुआ अपने हार्ट में, तो वो जब विष्णु को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, दैट है ना, आई एम दिस विष्णु, और आई हैव टू बी लाइक दिस विष्णु ना, आई हैव टू मर्ज विद इन, मुझे मर्ज करना है ब्रह्म ज्योति में। अल्टीमेटली ब्रह्म ज्योति से विष्णु का फॉर्म भी आ रहा है, ब्रह्म ज्योति से मैं आ रहा हूँ, तो मुझे भी वापस ब्रह्म ज्योति बनना है, मुझको भी विष्णु बनना है, राइट ना। तो अगर उसका ये कॉन्सेप्शन है, इसको होता है इम्पर्सनलिस्टिक कॉन्सेप्शन, अगर उसको है, तो क्या होगा, उसे अल्टीमेटली क्या मिल पाएगा ना, ही विल बी एबल टू गो टू द ब्रह्म ज्योति, बिकॉज ही हैज डिजायर फॉर ब्रह्म ज्योति, प्रोवाइडेड कि वो ऑफेंसिव नहीं है लॉर्ड्स के फॉर्म के लिए, ही एक्सेप्टेड, ओके विष्णु का फॉर्म है, विष्णु इज अ ब्रह्मन, इट इज नॉट मटेरियल फॉर्म। अगर वो मायावादी है, तब तो क्या होगा उसको, तो अगर वो मायावादी है तब तो फिर क्या, उसका कुछ गति ही नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उसको ब्रह्मवादी है ना, विष्णु के फॉर्म को डिप्राइव नहीं करता है, बट मानता है कि अल्टीमेटली सब कुछ ब्रह्म ज्योति से आ रहा है, ब्रह्म ज्योति हाईएस्ट है, देन ही विल बी एबल टू। तो इस तरीके का जो योगी है, उसने परमात्मा का दर्शन भी किया है, लेकिन क्योंकि उसके कॉन्सेप्शन में क्या है कि परमात्मा हाईएस्ट चीज क्या है, हाईएस्ट चीज है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति से सब कुछ आ रहा है, तो देन वो अल्टीमेटली ब्रह्म ज्योति के पास में जाएगा, ठीक है। बट मान लीजिए कोई योगी है ना, जिसने he got some association of the devotees, and he learned that how we are servants of Vishnu, we are meant to serve Vishnu ना। अगर उसका इस तरीके का मेंटल माइंडसेट है, तो उस केस में जब अगर वो योगा करता है एंड ही लैंड्स अप सीइंग द परमात्मा इन द हार्ट, और परमात्मा को देखने के बाद, परमात्मा का ब्यूटी देखने के बाद में, ही इज एबल टू हैव अ डिजायर टू सर्व दैट परमात्मा, तो वो क्या हो गया, भक्ति हो जाएगा वो, that will be the bhakti, because he will have attraction for Paramatma, he will desire to serve the Paramatma, and then such kind of yogi will be able to, then he can go to the Vakunthas, he can go to the spiritual world and he can get शांत रसा। तो शांत रस में वहां पे जाके भगवान का एसोसिएट बन सकता है, वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, he can become a tree or a bird, like that, और मान लीजिए अगर वो और भी, उसको और भी कुछ अदर रसास के बारे में भी उसने अगर नॉलेज पहले गेन किया है, और वो अगर उसको प्रैक्टिस भी करता है उस रसास को पाने के लिए, देन ही कैन ऑल्सो इवन गो टू सम अदर हायर रसास ऑल्सो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि योगी का डेस्टिनेशन किस पे डिसाइडेड होगा, कि क्या वो एस्पिरेशन लेके चल रहा है। अगर उसका इम्पर्सनलिस्टिक एस्पिरेशन है, देन ही विल बी एबल टू लैंड अप विद द ब्रह्म ज्योति। उसका अगर, है ना, इफ ही डेवलप सम डिवोशनल कंसेप्शंस,
तो क्या होगा, तो सच a yogi also, he will also become a devotee of the Paramatma, devotee of the Lord, and he will be able to have shantaras in the spiritual world. Okay, तो ये भी एक चीज समझाने का था यहाँ पे इम्पोर्टेंट के लिए। और एक लास्ट चीज ना, देखिए तो इसलिए ना, क्या सोच के वो अपना योग कर रहा है वो बहुत मैटर करेगा, है ना। योगा इज अ प्रैक्टिस, उस प्रैक्टिस से क्या उसको परमात्मा का एक्सेस हो सकता है। और अभी परमात्मा को देखने के बाद में उसका क्या एटीट्यूड रहेगा उस पर डिपेंड करेगा उसका डेस्टिनेशन क्या है ना। इफ ही हैज अप्रिसिएशन फॉर परमात्मा, ही हैव सर्विस एटीट्यूड फॉर द परमात्मा, देन ही विल बिकम भक्त, देन इट इज अ भक्ति, बिकॉज भक्ति मीन्स व्हाट, appreciation for the Lord and desire to serve the Lord. So then such a yogi, although he has practiced Ashtanga yoga, but he has become a devotee. Now he has come to the path of bhakti. That's the point, and that's why he's getting into the spiritual world. Important था, right ना। तो अगेन जस्ट समराइज करने के लिए देखिए, हमने जो चैप्टर में ओरियो देखा था, तो इसमें जो जो बीच वाला सेक्शन, देखिए लास्ट में अभी जो हमने डिस्कस किया 38 to 45, इफ द माइंड डिवेट्स द योगी व्हाट इज हिज डेस्टिनेशन, तो हमने ये देख लिया कि कैसे ना, he will not meet with durgati, and he will be promoted, he will have such kind of, in two ways Krishna will give him advantage. पहला एडवांटेज क्या मिलेगा कि जो उसने पास्ट में स्पिरिचुअल लाइफ किया है ना, वो उसके पास में रहेगी। जो उसके पास में गुडनेस आया है, सतोगुण आया है ना, जो उसके पास में उसने एडवांसमेंट किया, उसके साथ में रहेगा। और उसके साथ में उसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट भी मिलेगा फर्दर प्रोग्रेस कर लेने के लिए। ओके, एंड लास्ट में भगवान बताने कि टॉपमोस्ट योगी कौन है, जो अपने माइंड को कृष्ण में फिक्स करता है। ठीक है, अभी देखिए बीच में जो सेक्शन था 10 to 32, जिसमें मेंशन था कि कैसे हाउ ए योगी कैन मेडिटेट एंड ही कैन गेट रियलाइजेशन ऑफ द ब्रह्मन, परमात्मा एंड द भगवान, राइट ना। थोड़ा सा ये भगवान वाला जो चीज है, थोड़ा सा ये मैं उसमें क्लियर नहीं कर पाया था, बट आई विल जस्ट क्लियर इट, सी देयर आर सम श्लोकास जिसको हम लोग भगवान के टर्म्स में भी समझ सकते हैं, जो भगवान रियलाइजेशन के बारे में भी माने जा सकते हैं। तो लाइक श्लोका नंबर 30 तक आप खोलेंगे ना, युवाम पश्यति सर्वत्र, तो इफ यू सी श्लोका नंबर 28, 29, है ना, इस श्लोका नंबर इफ यू सी 28, तो एक आचार्य मतलब एक और अंडरस्टैंडिंग ये भी देते हैं कि जो श्लोका नंबर है हमारा, ठीक, श्लोका नंबर 27 जो है यहाँ पे बड़ा था ब्रह्म भूतम अकल्मषम, राइट, ब्रह्म भूतम, राइट, ब्रह्म भूता प्लेटफॉर्म को अटेंड करता है वो, है ना। एंड 28 वाला बोलता है कि ब्रह्म संस्पर्शम। तो आचार्य अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि 27 to 20 श्लोकास को हम लोग, दिस कैन बी मेंट एज एज द रियलाइजेशन ऑफ द ब्रह्म ज्योति, से ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन भी माना जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स कुछ आचार्य बताते हैं कि 28 को हमें मानना चाहिए कि परमात्मा रियलाइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो एनीवेज एनीथिंग इज राइट, नॉट अ प्रॉब्लम, बट है ना। तो वन थिंग दिस टॉक्स अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ द परमात्मा, ऑफ द ब्रह्म ज्योति और परमात्मा बाय द योगी, राइट। नेक्स्ट श्लोक इज शोली टॉकिंग अबाउट द परमात्मा रियलाइजेशन, 29, सर्वभूतम स्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, राइट, सर्वत्र, है ना, समदर्शन, राइट, हर जगह पे वो देख पाता है कि कैसे ना, ही इज देयर एवरीवेयर। तो दिस टॉक्स अबाउट द परमात्मा रियलाइजेशन ऑफ द योगी। ओके, और जो 30th श्लोक है देखिए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यामि, राइट, वन हु इज एबल टू सी मी एवरीवेयर, राइट, मी मीन्स कृष्णा। तो दिस कैन बी सीन, दिस कैन बी नोन दैट दिस इज फॉर अ योगी हु हैज गॉट रियलाइजेशन ऑफ द भगवान। तो ऐसा योगी जो भगवान, जिसके अंदर में लव सर्विस एटीट्यूड है ना लॉर्ड के लिए, तो वो जब भगवान को देखेगा, हृदय में परमात्मा को देखेगा, देन ही विल हैव भक्ति फॉर परमात्मा, ही विल हैव भक्ति। तो सच्चे योगी विल बी एबल टू सी लॉर्ड एवरीवेयर, ही विल बी एबल टू सी लॉर्ड कृष्णा। तो ये भगवान साक्षात्कार के लिए इस वर्ष को भी बताया जा सकता है, ऐसा से बता रहे हैं युमाम पश्यति, राइट, युमाम इज कृष्णा, वन इज एबल टू सी कृष्णा एवरीवेयर, ही विल एबल टू सी कृष्णा एवरीवेयर मींस ही इज हैविंग भक्ति, ही इज हैविंग रियलाइजेशन ऑफ द भगवान, है ना। और अगले श्लोक में भगवान इसी को कंफर्म करेंगे कैसे, है ना, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, सच a yogi who engages in the worshipful service of the super soul, knowing that I and the super soul are one, right, I means Krishna। ऐसा योगी जो मुझे और परमात्मा को समान समझता है और मेरी भजन करता है भजती, तो वो हमेशा मेरे में रहेगा। तो इस तरीके से ये उस योगी के बारे में बात की जा रही है जो भगवान का रियलाइजेशन प्राप्त कर पाया, राइट। लेकिन वो कौन पा पाएगा, जो अल्टीमेटली उस कॉन्सेप्शन के साथ में जिसने अपना योगा प्रैक्टिस किया है कि कैसे अल्टीमेट विष्णु है, एंड वी आर सर्वेंट ऑफ विष्णु। So then when he will have darshan of Paramatma, then he will have adoration for the Paramatma, he will have love for the Paramatma, and he may want to serve the Paramatma. In that way, that will be the Bhakti Yoga. Okay. So this was the summary of this. So this was the last few things about this chapter. So thank you so much for your being patient and hearing all these things very sincerely. And I also gained a lot by taking these discussions personally. Got to read Prabhupada books and hear from Chaitanya Chandra Prabhu
and read the commentaries by Vishnu Chakri Thakur and Srila Baldev Vidya Bhushan. It was very nourishing for me, and I really say that how if we read these things very nicely, sincerely, and meditate upon them, then it can lead to a lot of purification, lot of happiness, lot of bliss in our life, and especially all of you as devotees who have spent some number of years. It is a very good exercise if we can take to studying the Shastras ourselves and explaining them to others. In that way, we can get a lot of nourishment for ourselves. So thank you for your wonderful cooperation and for giving me this wonderful opportunity. And with this, we are ending with this section, and further sections will be taken by some more senior devotees. And now, in case if you have some questions related to what we discussed, so then I can be available on the phone anytime. You can call me the daytime, and that's all. Thank you so much. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Jai Gaur Premanande.